Welcome to the class. In last class, I have concluded क्या NMR and ESR, and I have concluded the molecular physics, and that was the 31st class. कौन सी class थी? 31st class. This whole course, according to my schedule, is of 45 classes. Only 14 or 15 classes are left out for the completion of entire course. I have covered A to Z of section A in 30 classes, and you are in a position of solving all the questions of last 20 years, including 2023. Now I have entered into yesterday's class. I have entered into section B, and section B is having two books: nuclear and particle physics, solid state physics and electronics. I have started with nuclear and particle physics. I have divided the entire syllabus of nuclear physics. First thing, according to me, is remembering the syllabus, understanding the syllabus, and correct word is appreciation of the syllabus, much broader word. Appreciation of the syllabus means knowing horizontal and vertical spread. Horizontal spread means कितना फैलाव है, और वर्टिकल स्प्रेड मतलब किसी टॉपिक में कितने गहरे जाना है. कहाँ से मालूम होता है कितना गहरे जाना है किसी टॉपिक में वर्टिकल स्प्रेड? हाउ डू वी फाइंड आउट वर्टिकल स्प्रेड? बाय ट्यूटोरियल सीट्स. हर चीज़ का प्रूफ है फिजिक्स में. ट्यूटोरियल सीट्स, वट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, you come to know by knowing the 10-year questions, 12-year questions, 20-year questions, what is the depth, how deeper you have to go. So according to me, thumb rule, what is the level of this course? क्या स्टैंडर्ड है? एमएससी लेवल है. बीएससी वाले से, बीएससी वाले ने इस कोर्स की हवाबाजी करी है, सरफेस में पढ़ा है, सिर्फ गहराई नहीं जानता है इस कोर्स की. गहरा कोर्स है. जो न्यूक्लियर फिजिक्स है एमएससी में पढ़ाया जाता है, जो बीएससी में पढ़ाया जाता है उसे मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं. क्या? मॉडर्न फिजिक्स. और वो सरफेस की नॉलेज है. कैसी? सरफेस की. डीपर नहीं है. डीपर जाने के लिए एमएससी का कोर्स है. इसलिए कौन सी किताब रिकमेंड करी है? डीसी तायल, जो एमएससी की किताब है. भारत भर के विश्वविद्यालयों में मास्टर्स में पढ़ाई जाती है. बुक बहुत बड़ी है, लेकिन रिलेवेंट पोर्शन सिर्फ कितने हैं? 200 पेजेज. 200 पेजेज पढ़ने हैं. सो आई have divided the entire syllabus into just how many chapters? 5 chapters. First chapter is basic nuclear properties or basics of nuclear physics. What basics of nuclear physics I am calling? Basic nuclear properties. Nucleus की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं? कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं? 6 हैं. साइज क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पैरिटी क्या है. गुड. There are 6 properties of nucleus, and all these 6 properties will make nucleus quantum system. If I ask nucleus is a quantum system, तो आपको कहना है एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, आपको कहना है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वांटाइज्ड. कैसे है? दैट इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व. उसका अलग कोई कहीं से अलग आंसर नहीं आएगा. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ए सेपरेट आंसर दैट व्हाई न्यूक्लियर इज ए क्वांटम सिस्टम. सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स. व्हेन a system becomes quantum system, if a system is quantum, it should satisfy each and every property of quantum systems, whatever you have studied in quantum physics. It should be indistinguishable, represented by wave function. So every particle can be represented by wave function, every nuclei can be represented by a wave function. Wave function can have parity. Parity is maybe space parity or spin parity. Spin is intrinsic to the particle. Spin is intrinsic. So spin parity can be also called intrinsic parity. 3 space coordinates, 1 parity coordinates. That is how NL, EML, EMS quantum numbers came for any particle. Good. Then what kind of interactions? In world of physics, there are only 4 interactions. Classical physics, 2 interactions, gravitational and EM. EM interaction. तो देखो टेबल बना रहा हूँ. अगर डिफरेंस, ये भी 6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6 टाइम्स. अभी नहीं पूछता है, बट हमारे टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट डाउन दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग, EM, वीक इंटरेक्शन. तो पहले चीज में ही बता दे रहा हूँ, पहली क्लास में ही, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू क्लासिफाई द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वन ऑफ द क्राइटेरिया इज अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन. If the particle is weakly interacting, I will call that class of particle as leptons. Lepton is a class of particles. क्या है उसके अंदर बताएंगे, बट लेप्टॉन इज ए
class of particles which take part in weak interaction. Good. And what lepton is a class? They do not have any internal structure. Lightest mass particles. Zero mass तो होगा नहीं. Zero mass का तो सिर्फ photon होता है which travels with velocity of light. So this is lowest mass particles. Then I will, on the basis of, if I will classify on the basis of mass, then also leptons will be the first category of particles. Classification on the basis of mass and classification on the basis of interaction, then weakly interacting particles leptons, strongly interacting particles hadron, और चार्ज पार्टिकल तो होते ही होते हैं, तो उनका कोई क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है. क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस व्हिच इन न्यूक्लियर फिजिक्स आर ओनली टू स्ट्रांग एंड वीक. गुड. सो देखो कैसे टेबल में लिखा जाता है, कैसे हाउ द टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन आई कैन इजीली फाइंड आउट. तो देखो पहला क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व. एक कॉलम और बनाना था, जगह कम है मेरे पास. पार्टिकल एक्सचेंज्ड. आई विल एक्सप्लेन whenever I will explain you Yukawa-Mason theory that how does an interaction arise. Origin of interaction, how does a force between two particles of a particular kind, two particles of particular kind. Particular kind means what kind of particles are involved. If charged particles are involved, interaction is Coulomb or electromagnetic. Massed particles are involved, interaction is gravitational. Similar way, if leptons are involved, interaction is weak. If hadrons are involved, interaction is strong. Kind of particles involved. So that is what I mean by particles involved. I will write. So interaction amongst the particles, why does it originate? There are various theories. And one of the theories is exchange particle theory, which is nothing but extension of Yukawa-Mason theory. Yukawa explained the origin of nuclear force, the force between neutron and proton, proton and proton, neutron and proton, which is force between proton and proton. Could be Coulomb repulsion also. Similar particles repel. But that force, repulsion force, Coulomb force is 10,000 times weaker than the proton-proton strong interaction. Good. So strong interaction is not due to charge. If because the interaction would have been due to charge, then it would have been only repulsive. So this interaction amongst the particles is visualized on the basis of exchange. Something is exchanged, and when something is exchanged, interaction takes place. We will explain in due course of time. So that is why every interaction these days is explained on the basis of exchange of some or the other particles. तो एक कॉलम ये भी हो सकता है exchange particles. So देखो ये लिखना है strong, strong के बाद EM, EM के बाद weak और weak के बाद gravitational. In yesterday's class also I told you, that gravitational force is 10 raised to power minus 40. If this is 1, क्या लिखा आखिरी, what is the last column? Relative strength. So if I treat this as 1, then it is 10 raised to power minus 40. That means with respect to gravitational interaction, strong interaction is 10 raised to power 40 times more stronger. So gravitational interaction is negligible in nuclear physics. Then strong interaction, kind of particles involved. Particles involved are called hadrons. They are massive particles. Hadrons are massive particles. Good. Class of particles take part in strong interaction are called hadrons. Because they are heavy particles, big particles, then they are visualized that they are also made up of some elementary particles called quarks. It is a model that hadrons can be made up of quarks. We will explain next class, not today's class. Next class I will say that hadrons are made up of quarks. But who are hadrons? Hadrons are the particles which take part in strong interaction. कौन है? क्योंकि पहली क्लास में हमेशा यही पढ़ाता हूँ. जब कोई पिक्चर देखते हो तो सबसे पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है. ट्रेलर में क्या होता है? कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलेन है, सब आता है ना पहले. म्यूजिक किसका है, फला किसका है, तभी उनका नाम लेते हैं ना, देखने वाले वो हीरो हैं. तो ये सब जो है ये न्यूक्लियर फिजिक्स के क्या हैं? हीरो हैं. ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या हैं? हीरो हैं. कि आप जान जाइए कि न्यूट्रॉन कौन है, बेरियन कौन है, हेड्रॉन कौन है. जानेंगे ही नहीं तो मैं कहीं न्यूट्रॉनो ला दूंगा, फिर कहेंगे न्यूट्रॉनो कहाँ आया था, तो सिलेबस में गलत जगह लाया गया था. न्यूट्रॉनो कहाँ आएगा? बीटा डीके के साथ आएगा वो. गुड. तो न्यूट्रॉनो के बारे में जानना कि उसका मास कितना होता है, कैसा होता है, वो सब कहाँ डिसाइड किया जाएगा?
फर्स्ट चैप्टर में कर दे रहा हूँ, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड इट्स classifications. One of the criteria is on the basis of interaction, then on the basis of mass, then on the basis of statistics. So quantum system can be, all those things can be used. So hadrons, what are hadrons? Hadrons are baryons and mesons. मास के हिसाब से कहूँ तो mesons प्लस baryons. मेसो माने बीच का, मेसो माने बीच का, intermediate. So mesons are intermediate mass particles and characteristic is that mesons are having zero spin. Mesons are the particles of zero spin. Zero spin means they are bosons. Good. Mesons and baryons. Baryons are heavier than mesons and both of them take part in strong interaction. Mesons and baryons take part in strong interaction, that is why they are hadrons. Good. And I can write their internal structure because they are massive particles. Hadron is a big class. उसके अंदर दो डाले, mesons and baryons. Mesons are bosons, zero spin, and they are all fermions. Baryons are fermions on the basis of statistics. We'll write in due course of time on the basis of statistics. So now later on I can say they are made up of, all of them are made up of quarks. Their internal structure can also be written in terms of quarks. So quarks are strongly interacting elementary particles. What are quarks? Strongly interacting elementary particles, which are all confined in some region. They cannot be separated. Particles involved. Hadrons, which is nothing, mesons and baryons. Baryons क्या है? Nucleons are also baryons. Baryon कौन है? Nucleons, constituent of nucleus, and hyperons. लैम्डा, सिग्मा, जाई, ओमेगा. लिखेंगे थोड़ी देर बाद. Baryons क्या है? Baryons are nucleons and hyperons. Nucleons and hyperons are baryons. Good. अभी इतना काफी है. Range. What is the range? Where these forces operate? Up to what distance this force operates? Only within the nucleus. 10 raised to power minus 15 meters. Good. Range, where the force operates. Lifetime कितना? Good. Strong interaction. ज़्यादा टाइम कि कम टाइम? बताइए, ज़्यादा टाइम या कम टाइम? कुछ तो सोचिए. Strong interaction. Strong interaction. More time or less time? Less time. Less time. रोज किसी के घर में जाओगे, रोज किसी के घर में जाओगे तो कैसा इंटरेक्शन है तुम्हारा? वीक है यार, बेकार गिने जाओगे. बम गिराया, बम. गुड. एक थप्पड़ मारा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इंटरेक्शन हो गया. कैसा? स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आई, एक थप्पड़ मारा, बम गिराया, गोली चलाई. कैसा इंटरेक्शन है? बड़ी देर तक चलता रहेगा वो, लेकिन एक इंस्टेंट लगा इंटरेक्शन होने में. पूरा खानदान हिल जाएगा, जिसके कुछ कर दोगे ना, सब मारने आ जाएगा तुमको दूर दूर तक. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बम गिराया गया होगा कहीं. हाँ. और क्या रेंज, क्या इंटरेक्शन. सो स्मॉलेस्ट टाइम 10 raised to power minus 23 seconds. समझ में आया? स्मॉलेस्ट टाइम, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. एक बार प्रधानमंत्री जी किसी को कुछ बोल दें, हो गया काम. एक बार. ये तो रोज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी. एक बार मुलाकात होगी, टिकट मिल जाएगी मुझे. एक बार बस. स्ट्रेंथ GF square 4 epsilon naught H cross C. GF is a nuclear charge. GF square 4 dimensionless. कैसा? Dimensionless. वहां था ना. फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कितना? E square upon 4 pi epsilon naught H cross C. क्या वैल्यू? 1/137. वैल्यू इज 137 और ये वैल्यू कितनी है? 14 है.
जाके चेक कर लेना किधर। नॉन डायमेंशनल कपलिंग कांस्टेंट, ये भी पूछता है, नॉन डायमेंशनल कपलिंग कांस्टेंट विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज व्हाट? GF स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught H cross C dimensionless, where GF is the nuclear charge. Yeah, E is the electronic charge, here it is the nuclear charge, charge on the nucleus. GF is average charge on the nucleus. This value is 14. गुड। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाएगी? सबको 14 से डिवाइड कर दूंगा, सबको 14 से डिवाइड करूँ, 1/137 को 14 से डिवाइड करूंगा, जो भी आएगा वो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो ऑर्डर उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस विल टर्न आउट टू e 10⁻⁻⁴ 1/137 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 14, 1/137 इंटू 14 करके निकालिए, ऑर्डर इज 10⁻⁻⁴। गुड। कपलिंग कांस्टेंट इज E स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught H क्रॉस C। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकाली जा रही है समझ जाइए, दे आर नॉन डायमेंशनल कपलिंग कांस्टेंट। 1 14 से डिवाइड किया, इसको भी कर दिया। गुड। स्ट्रेंथ typically if particles as a class of particles, if I say hadrons are made up of quarks and exchange particles are gluons. How the strong interaction arises? A strong interaction is an interaction amongst quarks. A strong interaction is interaction amongst hadrons. And what are hadrons? Whom hadrons are made up of? Hadrons are made up of quarks. Good. So when two quarks interact, that interaction is strong. And what do they exchange? Gluons. Gluons are exchanged. 12 gluons have been visualized. And by exchange of gluons there is a strong interaction. So अगर exchange particle लिखना होगा, quarks है तो gluons है। अगर nucleon है, because this interaction is also amongst baryons. Nucleons are also example of nucleons. Then the exchange particle is mesons, pi mesons. Exchange particle is pi mesons. That was the first theory which was built up by Yukawa. So that theory is generalized. Every interaction amongst the class of particle arises due to exchange of some particles, responsible for lifetime, responsible for range. Good. Range into lifetime. Range, distance is equal to velocity of the exchange particle into lifetime. Range क्या है? Distance, how much is the interaction? Lifetime कितना है, उसके बाद तो decay हो जाएगा particle. Lifetime of the particle multiplied by the velocity of exchange particle. Range कैसे निकाली जाती है? Range कैसे निकाली जानी चाहिए interaction की? Simple. Time, lifetime into velocity of exchange particle. यही किया था ना भाई मेसन निकालने में कहीं. Range, lifetime into velocity of exchange particle. That is how the range I can find out. So lifetime निकालना हो निकाल सकते हैं. पहला strong interaction, पूरा टेबल मालूम पड़ेगा जी. Strong interaction, एक टॉपिक और खत्म करे दे रहा हूँ संग संग, बार बार नहीं करूँगा. Salient features of nuclear force. Salient features of nuclear force. Try to understand and visualize correctly. Nuclear force is an example of strong interaction. Strong interaction is much broader class. Strong interaction is a much broader class. Strong interaction is amongst hadrons, amongst quarks. But if the particles are restricted, if I call only nucleons, hadrons are not only nucleons. Hadrons are what? Mesons and hyperons also. What are hadrons? Mesons. Mesons भी तीन तरीके के हैं, pi, eta, kappa. I will explain in due course of time. Mesons and hyperons. Nucleons also are there. Baryons are nucleons also. So only if the particle is nucleon, neutron and proton, then that interaction is called nuclear force. Example of strong force. That is why nuclear force, which keeps the proton together. Between two protons, Coulomb repulsion is of the order of 0.1 MeV. You can calculate Coulomb repulsion between any two protons. क्या होगा Coulomb repulsion? What will be Coulomb repulsion? Repulsion means potential. What? E square upon 4 pi epsilon naught capital R. What is capital R?
Where the protons? Inside the nucleus. What is the order? 10 raised to the power minus 15. घर में जाके कैलकुलेट करना, याद करना. Coulomb repulsion is of the order of 0.1 MeV. What is the temperature? What is the temperature? Temperature equivalent of 0.1 MeV. Temperature equivalent of 1 eV. 12,000. 1 eV is 12,000. So 0.1 MeV कितना? 10 raised to the power 5 eV. Temperature कितना हो गया? 10 raised to the power 9, 10 raised to the power 8. Good. So temperature 0.1 MeV, which is the Coulomb repulsion between two protons. They will repel by this much force. Equivalent of temperature 10 raised to the power 8. But still you know protons are the part of nucleus. Protons reside inside the nucleus. That means there must be some force which can keep them together. दो लड़ते लड़ाई झगड़ा करने वालों को अगर कोई आदमी कंट्रोल कर सकता है तो उसकी कितनी बड़ी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. दो लड़ने के तैयार भाग रहे हैं एक दूसरे को देख के, उनको कंट्रोल करके रखना है तो कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा? 10,000 times more stronger interaction. So strong interaction first of all is not charge dependent, is charge independent, attractive. Interaction among us proton and proton will be attractive. If it is repulsive, it is Coulomb interaction. So not that Coulomb repulsion is not operating. Between proton and proton, Coulomb repulsion will always operate. But there is an overriding effect. That overriding effect is strong interaction, which is 10,000 times more stronger than the Coulomb interaction. It is charge independence. One property is charge independent. It is same for neutron-neutron, same for neutron-proton, same for proton-proton. Good? And this is 10,000 times more strong. Strongest known force into the nature. Strongest known force into the nature is strong interaction. So nuclear force, which keeps the nucleon together. Simplest example of what is nuclear force? Which keeps the nucleons together inside the nucleus, is the strongest known force into the nature. It is called nuclear force. And nuclear force is the example of strong interaction. But it is not the only example. So whenever I will ask strong force, then you have to not only nuclear force, you have to cite some other examples also. Otherwise answer is incomplete. Good. But if I ask you what are the characteristics of strong nuclear force, and everything you can write whatever I am saying. Good. But if I ask only strong interaction, that means you have to give me some other example other than strong interaction also. That thing must be very clear. So strong nuclear force is a force between neutron and neutron, proton and proton, neutron and proton, which is charge independent. It is attractive. Salient features बता रहा हूँ. Salient features of strong nuclear force. Strong interaction, and whatever the strong nuclear force, same is strong interaction. Because strong nuclear force is nothing but the example of strong interaction. This is charge independent. Strong interaction is charge independent. That means it is similar for neutron-neutron, proton-proton, and neutron-proton. It doesn't depend upon charge on the particle. Then it is short range. पहले तो strongest, ये तो बताई दिया strongest known force into the nature. Then it is short range. It operates only within the nucleus. It does not operate beyond that. It very gradually falls off. It only operates within the nucleus. Strong interaction. Good. And the potential which is created due to strong interaction is called Yukawas potential. You can call Yukawas potential. Yukawas potential. Strong force, strong potential due to interaction amongst nucleons. Yukawas potential. Because Yukawa gave an quantitative explanation, qualitative explanation for the origin of strong nuclear force. Good. So it is short range. Short range. Short range is what? 1.7 to 2.2 Fermi. Typically 1.7 to 2.2 Fermi. Fermi means femtometers. Femtometer means 10 raised to the power minus 15 meters. So what is a strong nuclear force? Strongest known force into the nature. 10,000 times more stronger than the electromagnetic interaction. It is charge independent. That is similar for neutron, neutron, proton, proton, neutron, proton. That is short range. Short range. It operates within the
nucleus and 1.7 to 2.2 Fermi. Yes. It satisfies saturation property. It satisfies saturation property. Strong nuclear force satisfies saturation property. What is a saturation property? Saturation property means one nucleon interacts only with its immediate neighbors and gets saturated. One nucleon interacts only with its immediate neighbors and it gets saturated. One nucleon interacts only with its immediate neighbors and gets saturated. Saturated means, and this kind of interaction is prevalent throughout the whole nucleus. One strong interaction is, in a strong interaction, one nucleon interacts only with its immediate neighbors. So if the nucleon is spherical in shape, how many spheres can be drawn touching one sphere? 12, 6, 9, 12. So if the nucleon is in between, then it will get 12 neighbors maximum. And if it's surface, it will get lesser number of neighbors to interact with. Good. And strong interaction is interaction amongst the nucleon. बीच में बैठे हैं ये, बैठे ना? कौन से कलर की टी शर्ट है? रेड तो नहीं है, हाँ? मैजेंटा कलर की टी शर्ट है इनकी. मैजेंटा है? नहीं है, पीच है. कितना तुमने सही बताया. ये मैजेंटा बता रहे हैं, मैजेंटा नहीं, इनको कलर भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है. मुझे मालूम होता तो मैं पूछ लेता. मुंह घुमा के कितने लोगों से बात कर सकते हो वहाँ पर? 5 से 12 मुंह ऐसे घूमेगा, 12 से कर सकते हो बस, 12 से. और तुम कितने से कर सकते हो? 3 लोगों से. तुमको भागना ज़्यादा आसान है, किसको ज़्यादा भागना आसान है? तुमको. जो सरफेस में बैठा है वो लेस स्टेबल है. बहुत बड़ी बात समझा दी. जो सरफेस में है उसको भागना आसान है, बीच वाले को भागना मुश्किल है, क्योंकि आगे पीछे इसके कितने बैठे हैं? 12 नेबर बैठे हुए हैं और मुंह घुमा घुमा के 12 से बात कर सकता है. और ऐसा इंटरेक्शन अगर सारी क्लास के बीच में है तो कैसा इंटरेक्शन है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है. सैचुरेशन. 12 से ज़्यादा बात करने की इसकी इच्छा नहीं है. तुम्हारी है? किसी की नहीं है. किसी की नहीं है उससे ज़्यादा बात करने की. 12 को फ्रीडम दिया है. 12 तक अगर इनसाइड हो तो 12 से बात कर लो, और सरफेस में हो तो कम नेबर मिलेंगे तुमको. सो सरफेस अफेक्ट्स द न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियाई. They will make the nucleus unstable. So surface effects, whenever I will incorporate the surface effects in finding out the binding energy, they will be destabilizing effects. Correct? It is easier to displace the nucleon which is on the surface than the nucleon inside. And I was explaining saturation properties. Is it clear what is saturation property? Saturation property means a nucleon interacts only with its immediate neighbors and gets saturated, but this kind of interaction is available to all the nucleons. Every nucleon can do those things other than the nucleons which are on the surface. So explanation is clear. What is saturation property? टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. What is the name of the topic? लप्पाजी नहीं आकी जा रही, सिलेबस पढ़ा रहा हूँ. सिलेबस टॉपिक का नाम क्या है? Salient features of strong nuclear force. So सबसे पहला लाइन है, what is strong nuclear force? That force which keeps the nucleons together inside the nucleus. That is neutron and neutron, proton and proton, neutron and proton binds them. That binding force which keeps them inside the nucleus in spite of having Coulomb repulsion, 0.1 MeV Coulomb repulsion between the protons, but they are still held up together. That means force is many times more stronger than this. It is charge independent. From that I derive the charge independent. That is short range within the nucleus. Then it satisfies saturation property. Correct? So the 3-4 things I have told you. Then other characteristic. It is a spin dependent force. कैसा force है? Spin. It arises due to spin. बाकी कोई फोर्स में स्पिन लिखा था क्या? स्पिन इज प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स. दिस इंटरेक्शन में राइज ड्यू टू स्पिन फोर्स. It is spin. It depends on spin. It is non-central in nature. Force is non-central in nature. If force is non-central, that means it is central force means function of R. Potential will be function of R. So if the Coulomb potential, this strong potential is not should not be function of R alone. If it is a function of R alone, then it would have been a central force. Central force. It is non-central in origin. So force may be function of R and theta. If force is a function of R and theta, that means torque will act.
टॉर्क क्या है, R क्रॉस F. If F is only function of R, that means central force, torque will be 0. Torque is 0 means angular momentum is a constant of motion. If the force would have been central force amongst the nucleons, then torque must have been 0. Torque must have been 0 means angular momentum must have been a constant of motion. So if angular momentum is not a constant of motion, that means force is a non-central force. I will say that there is a change of angular momentum. I will demonstrate somehow that whenever I will go, elementary particle cross from here to there will be change of angular momentum. This is non-central in origin. Good. So how many properties? Strongest known force first. Then it is a charge independent. Then it is a short range. Then satisfies saturation. It satisfies saturation property. Spin dependency. Non-central. 6 हो गए कि नहीं हो गए? 6 प्रॉपर्टी हैं. There are 6 properties of 6 salient features of strong nuclear force. And whatever the properties of strong nuclear force, similar properties for strong interaction. Good. So one example of strong interaction is your nuclear force. Other example is production of strange particles. इसका all production reactions, production of strange particles is due to strong interaction. Strange particles are those particles which are produced by strong interaction and which decay by weak interaction. 2 examples I have given. There are many examples. बहुत सारी रिएक्शन याद करनी है आपको, जब बताऊंगा. ये तो पहली क्लास है. Strong interaction. One example is nuclear force. Other example is production of strange particles. So is clear what is strong interaction? मालूम पड़ गया भैया? If the particle is quarks, then exchange particle is gluons. और पूरी 6 फीचर बता दिए, salient features. All salient features I have told you. Then definitely when I write EM, electromagnetic interaction, it is also called Coulomb interaction. All charged particles किनके बीच में है जी? All charged particles. Coulomb interaction किसके बीच में है जी? All charged particles. And अच्छा इसमें एक बात भी quite attractive है. This is strong interaction is only attractive. It cannot be repulsive. Strong interaction is only attractive. एक characteristic होती है, it is only attractive. Electromagnetic interaction could be attractive as well as repulsive. Both the things it can be. That is the nature. Then range, infinite. Range is infinite. Every distance it operates. Every distance is operated. What is the lifetime? 16 seconds. Less. 10 raised to power minus 16 seconds. Order है नहीं है. और भी से आसपास भी हो सकता है. 10 raised to power minus 10 तक मान लेते हैं. 10 raised to power minus 10 to 10 raised to power minus 16. Strength already I have written. And relative strength is 10 raised to power minus 4. Good. And you know in great detail, it is not the, although every particle in nuclear physics, if it is having charge, then it can be also interacting by electromagnetic interaction. Not that in between proton and proton Coulomb repulsion is not there. Coulomb repulsion is also there. But if the proton has to be part of the nucleus, there has to be strong attractive potential which keep them together. That will arise due to strong interaction which is different from Coulomb interaction. Coulomb interaction will operate, but a strong interaction comes into the play whose potential is about 30 MeV due to strong interaction. That is called, we can also call Yukawa potential. Good. So electromagnetic interaction is clear. Good. Charge particle. What is the exchange particle? What is the exchange particle? When one charge particle comes to the other state, one charge particle hits the other particle. Interaction means hits. क्या होगा? एक पार्टिकल दूसरे से भिड़ जाए, क्या होगा? भिड़ जाए, कैसे भी भिड़ जाए, क्या होगा? फोटोन निकलेगा. एनर्जी लेवल विल चेंज. कोई भिड़ जाए तुमसे आके तो क्या होगा? एनर्जी बदलेगी कि नहीं तुम्हारी? कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी ना. और एनर्जी चेंज होगी तो क्या निकलेगा? फोटोन निकलेगा. तो एक्सचेंज पार्टिकल क्या? फोटोन. समझ में आया? कितना सरल बताया. इंटरेक्शन का क्या मतलब है? कोई आके तुमसे भिड़ जाए, चाहे तुमसे मुंह से भिड़ जाए, चाहे ऐसे भिड़ जाए. मुंह से भिड़ जाए तब भी तुम्हारी एनर्जी चेंज होगी. कोई बुरा भला कह के चला जाए तब भी इंटरेक्शन चेंज. कुछ ना कुछ तो ज्ञान के तंतु निकलेंगे ना. ज्ञान के तंतु, जो ज्ञान के तंतु वेलोसिटी ऑफ लाइट से निकलेंगे, ऊर्जा की किरण है शरीर से, वो क्या है?
फोटोन है, कोई भी भिड़ जाए आगे तुमसे, अच्छे से भी बातें कर सकता है, कुछ बुरा भला भी कह सकता है, तो मुंह से मन में भी इंटरेक्शन हो गया, मारपीट भी कर सकता है, और भी बात इंटरेक्शन की बाती के उपाय। ऊर्जा की रश्मियाँ तो निकलेंगी ही निकलेंगी, जो आपका चेहरा जैसा है वैसा नहीं रहेगा। तो क्या निकला? फोटोन निकला। एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। ठीक है जी, ये थ्योरी समझना कैसे। व्हेन द इंटरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अकर्स, व्हाट इज एक्सचेंज? फोटोन। फोटोन इज ए बोसॉन, वन स्पिन पार्टिकल। फोटोन इज ए स्पिन वन पार्टिकल। mesons are spin zero particle, exchange particle है, both of them are exchange. Gluons are also bosons. Gluons are also bosons. A thumb rule, all exchange particles are bosons. Then only spin will be conserved. Spin conservation is a basic conservation law. If spin has to be conserved, then exchange particle has to be bosons. Half and 1 is half integral spin. Half and 1. Half and 0 is also half integral spin. Half और 0 मिल जाए कहीं, half plus 0. And they are spin is angular vector quantity. So half and 0 is half. Half and 1 is also regarded as half integral spin. So half integral spin is to be conserved. Good. Clear हो गया जी. Third interaction, weak. किसके बीच में है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. Weak interaction is among electrons. What is the range? 10 raised to power minus 17 or 18 meters. 10 raised to power minus 17 meters. Inside the very short distance. 10 raised to power minus 18 meters. Lifetime and range are inversely proportional. Lifetime and range are inversely proportional. If lifetime is small, then if the range is small, then lifetime will be large. Lifetime is large. Good. आप घर में कितने दिन में जाते हैं? घर में अपने गांव में कितने दिन में जाते हैं? 3 महीने में जाते हैं. 5 साल में कोई जाएगा तो कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा. कहते हैं कोई. गुड. वीक इंटरेक्शन. रोज जाता है कोई, तो ऐसा जाते तो है, रोज हैं. कोई अगर कम है तो लाइफ टाइम अगर ज़्यादा है, बहुत दिनों में जाता है कोई, देन द वीक इंटरेक्शन. वीक इंटरेक्शन के लिए देख नहीं पाएगा कर. नो वन विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट हैपेंस आफ्टर 5 years. सो इस वीक इंटरेक्शन इज lifetime is large, more than 10 raised to power minus 8 seconds, more than, to several seconds. अब 10 raised to power minus 8 to 20 के बीच में जो भी होगा, 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 20, typically I will say is what interaction? Electromagnetic interaction. More than 10 raised to power minus 8 seconds. अगला लाइफ टाइम ही था ना? नहीं था. More than 10 raised to power minus 8 से कितना? Several seconds. और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल है. ग्रेविटेशनल का लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है. जीवन इनफाइनाइट. ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. Leptons, this exchange particles are intermediate vector bosons. What are exchange particles? Intermediate vector bosons. So this interaction is neither due to mass, nor due to charge, and neither it is a strong interaction. So all the characteristics, none of the characteristics of a strong interaction holds good. This interaction is not due to charge. This strong interaction is also not due to charge. This is a new kind of interaction, weak interaction. Not due to charge, not due to mass, not due to spin, none of the characteristics of strong interaction. Good. Range is within the nucleus. 10 raised to power minus 18 meters. Within 10 raised to power minus 15. Nucleus के भी किसी कोने में होता है. Very small distance. Where does it take place? Decay of the particles.
decay, interaction of decay, when the particle is decay, then this is a example of weak interaction. Production is a strong interaction, production of strange particles only by strong interaction, but decay is by weak interaction. Example, typical example of weak interaction is beta decay. Beta decay and decay of strange particle. Two examples I am giving you. Beta decay and decay of strange particles. सारी टेबल कंप्लीट हो गई. Kind of particles involve leptons, particles exchange, intermediate vector bosons. कौन है? W plus minus Z0. They are intermediate vector bosons. W plus minus Z0. I will explain in due course of time. And where it happens? In decay reactions. Decay of strange particles, and a particular example is beta decay. This is the example of weak interaction. These three interactions are important. Order is typically वो कितना था पहला 10 raised to power minus 4. This 10 raised to power minus 11 क्या 14. 10 raised to power minus 14. 10 raised to power minus 14. 10 raised to power minus 14 14. 10 raised to power minus 14. 14 1 4. 10 raised to power minus 1 4. So this strong interaction is 10 raised to power 14 times stronger than weak interaction. So weak interaction occurs when the particle decay. And what is decay? Decay कैसे लिखा जाता है? कोई ए जो है ना एक ही होगा. मरने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है क्या? प्रोडक्शन के लिए एजेंट की जरूरत है. बिना दो आदमी के मिले हुए प्रोडक्शन नहीं हो सकता. लेकिन डिके मरना है एक कोई, तो जब भी डिके होगा देखना, आइडेंटिफाई कर लेना डिके. ए ब्रेक्स इनटू बी एंड सी डिके है, लेकिन सिंगल ही है. टूट गया तो में ब्रेक 1 भी हो सकता है. ए डिके इनटू समथिंग. कई चीजों में हो सकता है ना. आदमी मरता है, क्या मर गया आदमी, तो क्या हुआ? क्या हुआ? पंच तत्व मिल बना शरीरा. शरीर जो है ना 5 तत्वों से मिला है. अभी तो अच्छी खासी बॉडी दिख रही है ना. जब खत्म हो जाएगी तो मिट्टी बन जाएगा, कुछ आग में चला जाएगा, कुछ आकाश में चला जाएगा, कुछ कहीं चला जाएगा. 5 चीज़ों से मिला है, तुरंत खत्म. खूबसूरत बॉडी रखी हुई है, जला जाएंगे 2-4 घंटे बाद, नष्ट. देखना नहीं है. बहुत प्रिय थे मेरे, लेकिन जब जैसे ही ऊपर गए डर लगने लग जाता है. लोग जल्दी जल्दी गायब करो इनको. तो क्या खूबसूरती है? किस चीज़ की खूबसूरती है? कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ अच्छाई. अच्छे थे या बुरे थे? वोल्टेयर नाम का एक फिलोसफर हुआ. क्या कह गया? वी डू नॉट ओ एनीथिंग टू द डेड अदर देन ट्रूथ. वी डू नॉट ओ एनीथिंग टू द डेड अदर देन ट्रूथ. अगर मैं घटिया इंसान हूं तो बनने के बाद ये नहीं कहने लग जाओगे कि सर बहुत अच्छे थे, घटिया ही था. अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो और एम्पलीफाई हो जाएगा, अच्छे इंसान थे. जब तक जीवित हैं तब तक तो ठीक है. तो जो है, इसलिए क्या करना पड़ता है जीवन काल में? अच्छे नहीं, मेरी भाषा को, मेरे शब्दों को पकड़ो. गुडविल. पूरी जिंदगी मेरी गुडविल क्रिएट करने का गेम है. ये बात मैंने जितनी जल्दी समझ ली थी इसलिए बड़ा आदमी हो गया. बड़ा आदमी में पढ़ाने से बड़ा नहीं हुआ. बड़ा तो मैं 22 साल की उम्र में ही हो गया था. स्टूडेंट लाइफ में ही बड़ा था. लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी लेके लीड कर रहा हूँ. क्योंकि लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी कैसे बनती है ये समझो. ये फिजिक्स तो पढ़ लोगे. लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी बनती है आपके विजन से. और विजन आप अपना स्वयं बनाते हैं कि आप किस लिए जीना चाहते हैं. जीने का उद्देश्य क्या है? जीने का उद्देश्य एमपी बनना, आईएएस, ना तो आईएएस बनना था ना एमपी बनना है. ये सब क्या है? मंजिल के पड़ाव हैं, स्टेप्स हैं. ये नहीं होगा, दूसरा रास्ता हो जाएगा. रास्ता क्या है? क्या जनरेट करने के लिए कर रहे हैं? गुडविल. रोज मिलते हैं, जितने भी लोगों से मिल जाएं. आईएएस होता है थोड़ा एक्सिलरेटेड हो जाता, फास्ट फॉरवर्ड हो जाता, ज़्यादा लोगों के साथ एमपी हो जाएंगे और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होगा. गुड. लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए में कुछ नहीं बनना. हम जो हैं ऑलरेडी उठे हुए हैं. हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या प्राप्त कर लिया? हमें आईएएस का बन के हम क्या बनते? कुछ नहीं बनते, नौकरी करते ज़्यादा से ज़्यादा. हमें आईएएस का एग्जाम फेल होने के बाद हम तो इनलाइटेंड हो गए. समझ रहे हैं? हम तो सीधे ब्रह्म में चले गए.
हमने जब 2 दिन 3 दिन साधना की, 3 दिन की साधना के बाद हम क्या हो गए, अपने को एनलाइटेंड हो गए। और इसलिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, लोगों को एनलाइटेनमेंट बनाते हैं। सबसे पहले जब फिजिक्स पढ़ने आए होगे ना, तो तुमको भी एक पारपत्र दिया होगा मैंने, और वो पारपत्र किसका है, मेरा नहीं है, इमानुएल कांट का है, जो बहुत बड़ा फिलोसफर इस एज का, और उसका बहुत बड़ा ऐसे है। क्या है ऐसे, व्हाट इज एनलाइटेनमेंट। ये ना है कि गौतम बुद्धा वाला एनलाइट, वो भी एनलाइटेनमेंट है, लेकिन हमारा एनलाइटेनमेंट वही है, हम उसी को एनलाइटेनमेंट मानते हैं जो इमानुएल कांट ने कहा है। एनलाइटेनमेंट का मतलब है कि हम अपने अच्छे और बुरे को, ये मत समझ लेना कि हमें बुद्धत्व प्राप्त हो गया और हम वो बाबा बन गए और संत बन गए। हमें एनलाइटेनमेंट होने के बाबा और संत बनने की जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अच्छे और बुरे को जानने लग गए और सामने वाले के अपमान, या सामने वाला आपका अपमान कर रहा है या आपका सम्मान कर रहा है, इन चीजों से ऊपर उठ गए, तो आप क्या हो गए, एनलाइटेंड हो गए। आपको कोई नहीं हिला सकता। आपको जो करना है, जिस एजेंडा में आप लेके बढ़ रहे हो, वो एजेंडा अगर अपमान और सम्मान से ऊपर हो जाए तो आप क्या है मेरी नजर में, एनलाइटेनमेंट हैं। उसको मैं एनलाइटेनमेंट समझता हूँ। तो मेरी जो क्लास है, जो कि भारत भर में मेरी प्रसिद्धि है, वो क्लास इसलिए है कि मैं यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ना सिखाता। मैं क्या सिखाता हूँ, आदमी को एनलाइटेनमेंट कैसे होना है। और कोई भी व्यक्ति एनलाइटेनमेंट प्राप्त कर सकता है। एनीवन कैन डू, प्रोवाइडेड ही और सी कम्स टू नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड नोज हिज और हर माइंड। आपको अपना माइंड जानना पड़ता है और उसको बड़े लेवल पर क्रिएट करना पड़ता है। मैंने अपना उद्देश्य जिंदगी का खोज लिया, मुझे सिर्फ गुडविल जनरेट करनी है। मैं सिर्फ इस पैरामीटर में जज करता हूँ किसी भी अपनी एक्टिविटी को, कि इससे जिस सामने वाले को कह रहा हूँ उसको फायदा होगा, वो उसको अच्छे में असेस करेगा या बुरे में, और फिर मैं सत्य बोलता हूँ। इसके लिए मैं सत्य का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि ये सब भी टाइम एवरेज है। ये नहीं कि इंस्टेंटेनियसली मुझे खुश करना है आपको, मुझे आपको इंस्टेंटेनियसली खुश नहीं करना है कि आप आइए मेरे सामने और मैं आपको बहुत प्रसन्नता पूरा कुछ कह के भेज दूँ ना। मैं नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जब रियलाइज करेंगे 3 साल के बाद, 2 साल के बाद कि सर ने क्या कहा था, सर ने सच कहा था जो कहा था, तब आप गुडविल जनरेट होती है। गुडविल कैसे जनरेट होती है, गुडविल जनरेट करना ऐसा काम नहीं, गुडविल कोई शॉर्ट टर्म मेजर नहीं है। गुडविल भी कोई शॉर्ट टर्म मेजर नहीं कि आपने किसी को इंस्टेंटेनियसली खुशी प्रदान कर दी और बाद में उस एडवाइस से नुकसान हो गया। समझ रहे कितने बड़े उद्देश्य के लिए काम करता हूँ। ये जबरदस्त गुडविल है, जबरदस्त। जहाँ पर भी आता हूँ डांटता भी हूँ तभी भी लोग खुश होते हैं। इतनी गुडविल तो ज़्यादा किसी के पास है ही नहीं। मतलब मेरा नाम चलता नहीं है, दौड़ता है। किसी को कुछ भी कह दूँ, मतलब छोटी मोटी बात है, किसी को कुछ भी कह के निकल सकता हूँ। देख रहे इतनी होशियार क्राउड है, किसी को कुछ भी कह के किसी को डांट देता तब भी किसी को बुरा नहीं लगता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। कोई तुमको कुछ कह दे, अभी भड़क जाओगे, बल्लियाँ उछलोगे, कैसे 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 क्या कह रहा है यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। और ये तो क्लास है, आप तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं। जब मैं कोई नई जगह जाता हूँ वहाँ पर भी वही होता है, वहाँ पर भी वही होता है। पहली बार मिलता है, उसके बाद लोग पैर छू के जाते हैं। तो भगवान ने ये जिसको बकस दिया उसको किसी चीज की क्या जरूरत है यार। मैंने कहा भगवान ने इतनी बड़ी मुझे वो बकस रखी है, मैं जिसको कुछ भी कहता हूँ जाके वो अल्टीमेटली, क्योंकि बातें तो इनलाइटनमेंट की करता हूँ, आपके हित की बातें करता हूँ कि आपको अपनी अच्छाई और अच्छे और बुरे का फर्क करना मालूम होना चाहिए। और हर एक के अंदर वो सेंस है, सिर्फ उस सेंस को क्या करना होता है, जागृत। अगर जो है आपके अंदर वही आपको मिलेगा, अगर आपके अंदर नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम पास करने की काबिलियत है तो मैं आपको एग्जाम पास कराऊंगा। अगर आपके अंदर एग्जाम पास करने की योग्यता नहीं है तो मैं उल्टा लटक लूं, मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा। आपके अंदर है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो क्षमता है, यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, देन ओनली आई कैन इग्नाइट। बट यू डू नॉट हैव दैट स्टफ, नो वन कैन डू एनीथिंग। तो उस ऊर्जा को पहचानना होता है, हमारे पास ये है, ऊर्जा को बढ़ाना होता है, एनर्जी को। चलिए समझ में आ गया भैया। वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन मालूम पड़ गया, तीनों तरीके के इंटरेक्शन मालूम पड़ गए, लेफ्टॉन सेटॉन मालूम पड़ गया। तो क्लासिफिकेशन और ग्रेविटेशन में कुछ लिखना नहीं है। ऑल पार्टिकल्स हैविंग मास इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, रेंज इज इनफाइनाइट, लाइफ टाइम इज वेरी लार्ज, वेरी लॉन्ग टाइम। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो सदा रहता है, ऑल टाइम। सेलेस्टियल बॉडीज से लेकर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, एनी काइंड ऑफ बॉडीज, इफ दे आर हैविंग मास देन इंटरेक्शन इज
Gravitational. It is only attractive interaction. It cannot be repulsive. Coulomb interaction can be repulsive or attractive. Strong interaction is also only attractive. Good. Range is also infinite. And exchange particle is graviton. Exchange particle is graviton. But it is of not much significance in nuclear physics. Type of nuclear reactions. Typically there are 7 different kind of nuclear reactions. 7 different kind of nuclear reactions. Elastic scattering, elastic scattering. 2 particles when interact, linear momentum is always a constant of motion. Interact, collision. Classical physics, whatever I call collision, for the quantum physics same thing is called scattering. So elastic scattering occurs between same particles, X and capital X. Same particles are produced. Same particles take part. Same particles are produced. Same particles are produced. X and X. What is elastic scattering? X plus X is X plus X. No new particles are formed. Capital X of mass m1, small x of mass m2. They collide, they interact. And same particle, if energies are not exchanged, then it is elastic scattering. If energies are exchanged, it is inelastic scattering. That's it. No kinetic energy. Here kinetic energy is conserved. Kinetic energy is conserved. X plus X is X plus X. Good. How the reaction is typically written? कैसे लिखते हैं? वैसे ऐसे रिएक्शन लिखते हैं. X, X, Y, capital Y. समझो. X plus X is Y plus Y. Small x is bombarded on capital X. Capital Y is formed. Small y is scattered. Lighter part is said to be scattered. ये बदल गया, कैपिटल एक्स से वाई बन गया, तो इसका कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन. कैपिटल एक्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल वाई. समथिंग न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन फास्फोरस, सम ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड और सम न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एंड प्रोटॉन इज एमिटेड. समझ रहे हैं? बैलेंस लिख ले 7 and 15 plus 0 और 8p 15 plus 0 and 1. Some other nucleus is formed. So if the new nucleus is formed, a new particle, neutron is bombarded, proton is emitted, 1h1 is produced, then I say small y. This reaction is called what? Nuclear transmutation reaction. थर्ड हो जाएगी. So पहले देखो इलास्टिक स्कैटरिंग, inelastic scattering. No new particles are formed. इलास्टिक में क्या था? X, 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 X. This is elastic scattering. X plus X is X plus X. ठीक है ना? क्लासिकल मैकेनिज्म में क्या किया था? M1 U1 plus M2 U2. तो पार्टिकल बदला था क्या? उसी पार्टिकल की वेलोसिटी V1 और V2 हो गई थी और एनर्जी कंजर्व था. करेक्ट. लैबोरेटरी में. So X, X. Good. If it is inelastic scattering, then X star, capital X star. X plus X, X plus X, क्या? X star plus X star. Star means some other energy level. Energy level has been changed. Capital X energy level changed. Particle is same, but energy levels are changed because energy exchange is allowed. Kinetic energy is not conserved. If kinetic energy is conserved, is the example of elastic scattering. But no new particle is formed, neither elastic collision or inelastic. And all the things whatever we did into the classical physics, that holds good for elastic scattering and inelastic scattering. Good. So if no particles are formed, that means it is elastic or inelastic. If the particles are left into the excited states, it is inelastic. In the same state, elastic. था ना? रमन effect करके दिखाया था ना? Collision between photon and molecule. If state does not change, then it is what? Elastic. State changes. Ground में था molecule, goes to the excited state, or from excited state it comes down to the ground state. Energy is exchanged. It is inelastic scattering. So
Raman scattering was the example of inelastic scattering. Rayleigh scattering is the example of elastic scattering. कोई नया नहीं बना था. X plus X is, but if third category, if X plus X is Y plus Y, ऐसा हो गया. Capital X has been transmuted into capital Y. Small x has been converted into small y. New particle is formed. 15p 30 plus 0 n1 is equal to some 7 and 14 plus 1h1. This kind of things happens. Balance, मुझे balance याद नहीं. Reaction has to be balance. Phosphorus का reaction हुआ neutron से. Good. And what is formed? Some new nucleus is formed. Neutron is formed. Nitrogen is formed. And proton is emitted. This is the example of nuclear transmutation. Very easily to identify nuclear transmutation reaction. Capital X, capital Y. X plus X is Y plus Y. ऐसे लिख देंगे capital X is transmuted into capital Y by the help of small x. Y small y is scattered. Lighter particle is said to be scattered. Capital X has been converted into capital Y required. Third reaction. Third was क्या बोला जी? Nuclear transmutation. फिर दो बहुत सरल सरल, सबको मालूम है जी, सबको मालूम है. न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस. फिशन रिएक्शंस, फिशन रिएक्शंस 92 35 plus 0 n1, 56 36 Kr 91 plus 56 Va 102 or something, krypton and barium. Good. Plus some neutrons are emitted. Nuclear fission reactions. A heavier nuclei by bombardment with the neutrons can be broken into lighter fragments. If two fragments, then it is fission. More than two, spallation, nuclear spallation reactions. More than two fragments, फिशन. इसी को क्या बोलते हैं जी? स्पालेशन रिएक्शंस. इसमें भी यही होगा. x प्लस एक्स, फिशन क्या हुआ? कैपिटल X प्लस स्मॉल x इज y प्लस स्मॉल y. कुछ ऐसा बन गया. 92 35 प्लस 0 n1. दिस इज फोर्थ और फिफ्थ. एक रिएक्शन स्पालेशन. व्हाट इज स्पालेशन? मोर देन टू फ्रेगमेंट्स, breaking into more than two fragments. Fusion, two lighter nuclei, two lighter atoms, lighter nuclei fuse together and form a bigger nuclei. And something else is also formed. 1H1 plus 1H1 is 1H2 plus 1E plus 1H1 plus 1H1. क्या बना जी? 1H2. गुड. प्लस 1E प्लस एक प्रोजिटॉन निकलेगा जी, तभी चार्ज कंजर होगा. नॉट इंटरेस्टेड. 1H1 प्लस 1H1 पढ़ा होगा ना 12वीं क्लास में जी. हम तो नाम बता रहे हैं और सिलेबस में बैटिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बता दिया है. इसलिए बता दिया कि कंजर्वेशन लॉ बता दें आपको. 7 तरीके की रिएक्शन है, हर जगह काम आएंगी जी. गुड. कितनी हो गई जी? 5 ही हुई हैं अभी, सिर्फ 5 ही हुई है. 5 तक तो हर एक आराम से सोच सकते हैं. न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, कैपिटल Y स्मॉल y इज फॉर्म्ड. इस इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, फिशन एंड फ्यूजन. थोड़ा दिमाग लगा लिख सकते थे. 2 और हैं कम से कम. रेडिएटिव कैप्चर एंड फोटो डिसइंटीग्रेशन. रेडिएटिव कैप्चर 6 इज रेडिएटिव कैप्चर. रेडिएटिव कैप्चर रेडिएटिव कैप्चर क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत बार बता चुका ना. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक? जब ये बताता हूँ इसको क्यों बताता हूँ मैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर बार बताता हूँ. क्यों? हाँ, कॉज और इफेक्ट को कनेक्ट करने के लिए कि फोटोन गिरता है और क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है. फोटोन इज इनपुट, इलेक्ट्रॉन इज इन आउटपुट. रेडिएटिव कैप्चर, कैप्चर इज इनपुट, रेडिएशन इज इन आउटपुट. समझ में आया क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ तो यही. x प्लस एक्स इज y प्लस वाई. x प्लस एक्स स्मॉल x को खा लिया. स्मॉल x को क्या किया? न्यूक्लियस ने खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, हैवी बन गई. ये x प्लस एक्स इज x स्टार, कंपाउंड न्यूक्लियस बन गई. क्या बन गई?
वाई प्लस वाई, वाई मतलब गामा फोटोन बन गया। स्मॉल वाई क्या है जी? गामा फोटोन है, फोटोन है ये। और दोनों उल्टी हैं। कौन कौन सी? फोटो डिसइंटीग्रेशन एंड रेडिएटिव कैप्चर। रेडिएटिव कैप्चर में रेडिएशन निकलता है। दिस स्मॉल एक्स इज एब्जॉर्ब्ड, स्मॉल एक्स इज एब्जॉर्ब्ड, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड, खा लिया और खा के क्या हो गया? हायर एनर्जी में चला गया हो, कैपिटल एक्स। कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, देन कंपाउंड न्यूक्लियस इट विल डिके इनटू समथिंग एंड क्या निकालेगा? रेडिएशन विल बी एमिटेड, फोटोन विल बी एमिटेड, दिस इज कॉल्ड रेडिएटिव कैप्चर। पढ़ सकते हो बुक में जाके। उल्टा है फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो इनपुट क्या है? फोटोन। सर्टेन रिएक्शंस विल अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सर्टेन रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब स्मॉल एक्स इज ए फोटोन, स्मॉल एक्स इज ए फोटोन, कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स इज कैपिटल वाई प्लस वाई। डिसइंटीग्रेशन, दो में ब्रेक हो गया। लाइट खाया, जैसे होता ना CH3 इन प्रेजेंस ऑफ H nu, लाइट ब्रोकन इनटू समथिंग समथिंग। क्या एग्जाम्पल? फोटो डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकिंग इनटू टू बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटॉन्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फोटो डिसइंटीग्रेशन। और हमारे लिए सब क्या हुई फिजिक्स में? फिजिक्स में सब क्या हुई? एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस वाई। स्मॉल एक्स फोटोन था, कैपिटल वाई बना और कुछ किसी स्मॉल वाई में ब्रेक हो गया। समझ में आ गया भैया? ये 7 तरीके की रिएक्शन है सारी। और इनफैक्ट अगर स्पॉलेशन को सेपरेट गिन देता तो 8 काइंड ऑफ रिएक्शंस, दैट्स इट। पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स इस 8 रिएक्शन का गेम है। गुड। एवरी पार्टिकल स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, एवरी पार्टिकल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स मास, चार्ज, स्पिन, लाइफ टाइम, statistics, correct? Every particle. Statistics means Fermi-Dirac statistics or boson. If it obeys Fermi-Dirac, it is fermion. Bose-Einstein, boson. This is the classification of elementary particles on the basis of spin. Classification of elementary particles on the basis of spin. Full integral spin, bosons. Half integral spin, fermions. They obey Fermi-Dirac statistics. And bosons is obey Bose-Einstein statistics, आपको मालूम है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जी एक झटके में पहले खत्म किया। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। स्पिन, क्या क्राइटेरिया? स्पिन। इफ द क्राइटेरिया इज स्पिन, द पार्टिकल्स आर bosons and fermions. Bosons are I is equal to 0, 1, 2, 1, 2, full integral spin, and they are half 3/2. समझ में आया भैया? हाफ 3/2 आर कॉल्ड fermions. न्यूक्लियस का भी यही क्लासिफिकेशन है, न्यूक्लियाई, सेम क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियाई, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर nuclei, same criteria is there. Spin. Good. Interaction, interaction on the basis of interaction, only 2 classifications, क्योंकि बाकी सब redundant है न्यूक्लियर फिजिक्स में। on the basis of interaction, क्या जी? leptons. If they are weak interaction, then they are leptons. Strong interaction, hadrons. क्राइटेरिया समझ रहे हैं? क्राइटेरिया। देन तीसरा मास, मास के बेसिस में तो होगा ही होगा, कोई मोटा है कोई हल्का है। सबसे पहले देख के क्या बोलते हो जी? हाथी जैसा है, ऐसा सीकड़ा है एकदम सीक जैसा, दुबला पतला मरगिल्ला आ गया जी। मरगिल्ले भी पसंद नहीं आते हैं अरे, मरगिल्ला है ठीक है हमारा ऐसा। मेरा एक दोस्त था, मरगिल्ला था, खूब हॉस्टल में दूध पीता था, केला खाता था कि मोटा हो जाए, हमेशा मरगिल्ला ही रहा। कुछ हाथी जैसे होते हैं, कुछ भी ना खाएं तब भी फूले हुए हैं, और जब फूल गए उन पर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। विजन 180 से ऊपर, 180 किलो वाला मरीज आएगा ना, देखा 180 किलो वाला कभी? तो उसको 180 किलो वाले को बैरियाट्रिक सर्जरी करनी पड़ती है। न्यूक्लियर फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? विजन। स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा वो?
किशन करेगा अपना, वेट घटाएगा नहीं तो गया। बहुत भय हो जाता है, 100 किलो के ऊपर से होते हैं ना, 100 110, तो बहुत उछल कूद करते हैं। सवेरे सवेरे देखे होगे पार्कों में अंकल जी घूम रहे हैं मोटे मोटे, मोटे मोटे। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, घूमने वूमने भी नहीं जाते, घर में बैठ के किताब पढ़ते हैं, सवेरे सवेरे पोस्ट लिखते हैं सिर्फ व्हाट्सएप की। ट्विटर में क्या लिखना है, ट्विटर हम खुद हैंडल करते हैं, हम सारा सोशल मीडिया खुद हैंडल करते हैं, खुद किसी ऑपरेटर को नहीं बैठा ला है। हमारे 4 पेज चलते हैं, 4 1 2 नहीं, 5 हज़ार फॉलोअर वाले चलते हैं। मेरा बच्चा कह रहा है कि पापा और भी बना देते हैं, 10 और बनवाते हैं। लड़का मेरा एडवाइस देता रहता है, तुमको भी किसी को एडवाइस देनी हो तो दो, ठीक है जी। तुम में भी किसी को चाहिए तो मुझे अच्छी टीम की ज़रूरत है, अच्छे होशियार लोगों को, सोशल मीडिया की टीम, क्योंकि हम 24 में रन करना चाह रहे हैं। 24 में हम लोकसभा के लिए रन करना चाहते हैं। बहुत हो गया जिंदगी, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बलरामपुर, 15 साल से है। 37 लोकसभा सीट है, 24 में रन करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी के सिपाही के तौर पर, ठीक है। नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो खड़े होंगे, किसी और पार्टी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, ठीक है जी। और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, और आप सबको ऊंचाई पे उठाने के लिए, देश को इनलाइटनमेंट कराने के लिए, ठीक है जी। हमारी सीट पूरी 130 किलोमीटर की है। 2 दिन तक चलते हैं, तब एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच पाते हैं, और आम आदमी से बात करते हैं, और जिससे बात करते हैं वो बस। तो कैंपेन रन करने जा रहे हैं, अक्टूबर से कैंपेन रन होने वाला है, फुल बजट कैंपेन। वाजपेयी सर बलरामपुर को चाहिए, वाजपेयी सर। नहीं भाई है, देश मेरे जैसे लोगों को ही चाहिए ना, जिसको एजेंडा क्लियर होगी क्या करना है, और न्यूट्रल आदमी है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है ज़िंदगी की। 20 रुपये में खाता है, 20 रुपये में खाता है। गांधी जी से क्या सीखा, मैं ऐसे जाता हूँ, किसी स्कूल में घुस जाता हूँ, 3 काम करता हूँ हर मीटिंग में, 3 काम, 3 दिन के लिए गया। हर समय का सदुपयोग करना यार, टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास छोड़ के गया हूँ, तो पहले दिन स्कूल कॉलेज में जाऊँगा, कहीं ना कहीं जाना ही जाना है, आइडेंटिटी का हिस्सा है। लड़कों से बात करनी है, यूथ से बात करनी है, आइडेंटिटी का हिस्सा है। उसके बगैर इमेज पूरी नहीं होती है। कहीं गए कुछ भी, अभी गांधी जयंती वाला बताऊंगा क्या पूछा जाके, वीडियो बना हुआ है, जैसे जहाँ जाता हूँ वीडियो तो बनी जाता है, वो भी प्री रिक्विजिट है कि ताकि बाद में भी देख ले क्या कहा था जाके। रिकॉर्डिंग होती है ना, जब चलते हैं, आप चले तो आपके साथ जमाना चला। तो फिर तीसरा काम होता है, कवियों के साथ बैठते हैं। हमारी बिरादरी, कौन सी बिरादरी, एक तो टीचर, शिक्षक हैं जी। शिक्षक अपने चरित्र से लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, चरित्र से सिखाते हैं। तभी जो तीसरी, उसको सरल भाषा में कहते हैं चरित्र से। जो तीसरा पॉइंट बोलते हैं ना, थर्ड क्या है मेरी क्लास का डेफिनेशन, एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। फिजिक्स की क्लास में एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म है। अगर हिंदी साहित्य पढ़ाने लग गए होते, या कोई लिटरेचर पढ़ा रहे होते, तो क्या कहते, अपने चरित्र से लोगों का परिमार्जन करते हैं। ये पढ़ाते नहीं हैं। हम 15 घंटे मेहनत करने की कैपेसिटी रखते हैं, और लोगों को 15 घंटा काम करना सिखाते हैं। 2 दिन चल लो, आदमी बना देंगे। जानते हो लड़कों को क्या कहते हैं जाके कहीं पर भी, 2 दिन हमारे साथ चल लो। हम 5 बजे सवेरे उठेंगे, 11 बजे तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। 5 बजे उठेंगे सवेरे, और 11 बजे तक नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, कुछ चले जाएंगे कहीं पर भी। कितनी एनर्जी से चल रहे हैं, बैठेंगे नहीं। जो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करता हो नॉन स्टॉप, और आपको रोज सिखा देंगे। और कोई नेगेटिव बात बोलेगा, किस बात से, ऊपर उठ के अपमान और सम्मान। सामने वाला को अच्छा लगे तो अच्छा, और बुरा लगे तो और भी अच्छा, ठीक है जी। इस बेलाग बातों के लिए जाने जाते हैं। मैंने कहा अपनी आइडेंटिटी में तुम वोट नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी आइडेंटिटी से कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। धरती के आदमी है, और धरती में कैसे उठाया जाता है लोगों को, ये जानते हैं। और टिकट, बस फाइट क्या होती है पॉलिटिक्स में, नेताओं का नेता बनना थोड़ा कठिन होता है। फाइट है सिर्फ टिकट की, जीतने की कोई फाइट नहीं है। कोई भी खड़ा हो ले आके, समझ रहे हो। इस चैलेंज के साथ हैं कि अगर हम 3 महीने कहीं भी बैठ गए ना, भारत के किसी भी लड़के तो कहते हैं तो कनाडा में जितवा देंगे, तुम आगे बात कर रहे हो जी। हम 3 महीने कहीं भी बैठ जाएं जाके, 3 महीना सिर्फ, और जोतना चालू करें, जैसे खेत को जोता जाता है ना, सवेरे से शाम तक,
और हर एक आदमी से बात इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाए। 3 महीने बहुत होते हैं। अगर प्लानिंग के साथ जाओगे तो आप कितना ही बड़ा क्षेत्र हो, हमारा क्षेत्र 130 किलोमीटर का है, मतलब मेन सिटी से लेकर एकदम बॉर्डर तक जाते हैं और सारा पूरा वो डिस्टर्ब एरिया है। नेपाल की पोरस बॉर्डर है, लोग खूब घुस के आते हैं और एसएसबी बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पोरस बॉर्डर है। अब ये फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है, और नेपाल के साथ क्या करें, बॉर्डर पोरस है। तुम्हारी अब तुम मणिपुर किताब में पढ़ रहे हो, मणिपुर में ये हो गया, क्यों हो गया, बॉर्डर पोरस है। म्यांमार की बॉर्डर क्या है, पोरस है। वो आते हैं ड्रग वग बेच के अपना चले जाते हैं, यहाँ से कहोगे वहाँ भाग जाएंगे, वहाँ से कहेंगे यहाँ आ जाएंगे। उनको डंडा करोगे, पकड़ोगे, वो उधम करेंगे, गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे। अब आपको हम चीफ मिनिस्टर नहीं हटवा रहे, हमें मालूम है क्या नाटक हो रहा है, क्यों चीफ मिनिस्टर हटाएं, हम चीफ मिनिस्टर क्यों हटाएं, जब हमें मालूम है कि अगर जब भी इस तरीके के एलिमेंट पर नकेल कसेंगे तो क्या करेंगे, वाकई उधम ही बचाएंगे ना, न्यूसेंस करेंगे ताकि गवर्नमेंट चली जाए, फिर से वही काम करें। खैर फिजिक्स पढ़ा दें तो इंटरेक्शन मास leptons आर लाइटेस्ट मास पार्टिकल्स, मास के क्लासिफिकेशन में सेट है। फिर उसके बाद बीच में मेसॉन्स मीन्स बीच वाला, हमेशा मेसो, जहाँ पे भी मेसो होगा ना, मेसो इज पेयर, मेसो मीन्स मिडिल, इंटरमीडिएट, देन हेड्रॉन्स या बेरियंस, सब मास के बेसिस पे, बेरियंस। समझ में आया मास के बेस का क्या क्लासिफिकेशन है, लेप्टॉन्स, mesons, intermediate mass. Mesons are those particles whose masses are in between leptons and baryons. Strangeness. Classification on the basis of strangeness. Peculiar behavior. Strange behavior. Strange means peculiarity. अजूबा है, अजूबा. क्या अजूबा है? प्रोडक्शन बाई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, डीके बाई वीक इंटरेक्शन। इन न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसे अजूबा बोलते हैं। स्ट्रेंज, प्रोडक्शन इज बाई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, डीके इज बाई वीक इंटरेक्शन। अनदर एक अजूबा तो ये है कि प्रोडक्शन बाई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, डीके बाई वीक इंटरेक्शन। इसका भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, कहीं भूलोगे नहीं जी। पैदा हुए थे हिंदू और मर गए मुसलमान, ठीक। पैदा तो हिंदू हुए थे और उनको किसी ने गाड़ दिया, मरने के बाद कहीं मर गए जाके, और पुलिस ने क्या किया, उनको बेचारों को गाड़ दिया। उनके रिश्तेदारों को बाद में मालूम पड़ेगा उधम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, या उल्टा हो जाए। पैदा मुसलमान हुए थे और पुलिस वाले ने समझा कि जला दिया उनको, जैसे मालूम पड़ेगा क्या हो जाएंगे। पेकुलियर देश में ही सही होगा ना। तो जिसका जो पैदा हुआ है वही बनना चाहिए। गुड। धर्म बदलने की परमिशन ही नहीं है यहाँ इस देश में, तो है नहीं। ऐसाम धर्मा सनातना, धर्म परिवर्तन की परमिशन नहीं है क्या? है? नहीं है यार। एक्ट नहीं लगा हुआ है, एंटी कन्वर्जन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ, बहुत सारे स्टेट में लगा हुआ है। नहीं है? मुझे बताओ क्या धोखे से? अरे है ना, लेकिन कन्वर्जन में बैन लगा हुआ है ना काफी स्टेट में। हरियाणा में लगा हुआ है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में भी है। स्टेट का है, अरे मुझे श्योरिटी नहीं हूं, लेकिन ऑल इंडिया में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में बैन लगा हुआ है। यू कैन नॉट कन्वर्ट। और नॉर्मली कन्वर्जन कैसे होता है? इल्यूजन ही होता है यार, सब एलूरमेंट ही होता है। ऐसे कौन बदलता है? श्रीमद् भगवद गीता में वो आता, प्रसंग आता है कि श्रेयाम स्वधर्मम, श्रेया उसको भूल गया मैं, कि अपने धर्म में मरना भी उचित है, दूसरा धर्म भयावह होता है। मतलब आप जो हो वही काम करोगे तो अच्छा है। दूसरे किसी काम में जाओगे, किसी दूसरे घर में जाओगे तो आपको बड़ा अजूबा प्रतीत होगा। आई एम नॉट एबल टू कोट एग्जैक्टली, जरूरत नहीं है।
तो क्या स्ट्रेंजनेस, तो क्या व्हाट आर द स्ट्रेंज बिहेवियर्स, व्हाट इज द स्ट्रेंज बिहेवियर? प्रोडक्शन इज बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, डीके इज बाय वीक इंटरेक्शन। आपको याद रखना है, जैसे भी याद रखो। दूसरा अजूबा क्या है? व्हाट इज द सेकंड स्ट्रेंजनेस? घर में ट्विनी ट्विन पैदा होते हैं किसी के, ट्विनी ट्विन, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं कैसे? ट्विंस। तो अजूबा नहीं हो जाएगा गांव में भाई इनके घर में क्या होते हैं? सिर्फ ट्विनी ट्विन प्रोड्यूस होते हैं। सो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में एसोसिएटेड पेयर प्रोडक्शन। दो होंगे संग संग, दो स्ट्रेंज पार्टिकल हमेशा संग संग ही होंगे। जब भी स्ट्रेंज प्रोडक्शन होगा हमेशा दो स्ट्रेंज संग संग ही होंगे। इट इज कॉल्ड एसोसिएटेड पेयर प्रोडक्शन। गुड, याद रहेगा हमेशा। ट्विंस आर बॉन्ड मीन्स associated pair production. The strange particles are never produced single, they are always produced in pair, associated pair. That is why they are called strange particles. And this behavior has been quantified. Physics is the name of quantification. लंबे हैं ये, फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स है 182 सेंटीमीटर हाइट है, समझ रहे जी? फिजिक्स कैसे वाला बोलेगा कितना टेम्परेचर? हाँ इतना टेम्परेचर, बहुत तापमान है, ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स नहीं है, बहुत तापमान है, भीड़ आई थी ना, कितनी आई थी? क्वांटिफिकेशन। फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स इज क्वांटी मेजरमेंट। आंखों से मेजर कर लो कि कितनी हाइट, कितना वेट, कितना टेम्परेचर, कितना क्या। तो फिजिक्स का आदमी लफाजी की बात नहीं करता, 2+2 4 ही होना है मेरे यहाँ। पॉलिटिक्स में कुछ भी कह दूँ, 2 और 2 मिल के 22 1 और 1 मिल के 11। मेरे यहाँ तो 1 और 1 मिल के 2 ही होगा। 1+1 भी हो सकता है, वैसे 1+1 1 भी कर सकता हूँ मैं। अगर कहूँगा भूले ले देवड़ा है मैं वो भी कह सकता हूँ आपको। A क्रॉस A को जाके IH क्रॉस A भी बोल के निकल सकता हूँ कहीं पर भी। मेरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा तुमको। जब भी मैं कहीं बोल रहा हूँ तो लोगों के साथ मैंने फिजिक्स दी है जिंदगी भर। एक आध बात तो बोल ही दूंगा ऐसे कि सामने वाले को घूमना फिर जाए कि ढूंढना पड़ जाए इधर क्या कह चले गए। तुरंत ही झटके से सर ही लिखेगा वो। प्रचार में भी सर ही लिखा जाता है, वाजपेयी सर। तो आइडेंटिटी बनाने में 25 साल लगे हैं, खत्म नहीं होगी जल्दी जल्दी। लोकसभा में लोग सर ही सर बोलेंगे, वाजपेयी सर। जी गए मैं भाई साहब। तो आप जो बनते हैं लाइफ टाइम बनते हैं, उसको बनने के लिए उल्टा लटकना पड़ता है। और अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल ही होंगे। तो इसलिए तैयारी करना कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी वेस्ट नहीं जाता। अपनी इन्वेस्टमेंट है, टाइम जो है, लर्निंग जो है, ये इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेंज कौन आदमी आया? जेलमैन निशिजिमा। जेलमैन निशिजिमा क्लासिफाइज पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर वही इंट्रोड्यूस करना, इसलिए सारा पूरा नाटक किया गया है। जेलमैन निशिजिमा स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज एंड नॉन स्ट्रेंज। यस इज जीरो, नॉन स्ट्रेंज, यस इज नॉन जीरो, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज पार्टिकल्स एंड नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स। समझ में आ गया? 4 क्राइटेरिया हो गया। Another thing, another classification is unification, grand unification, symmetry groups. 5th classification is symmetry groups, SU1, SU2 and SU3. Symmetry groups, 5th classification. Strange में सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन है, strange particles and non strange particles. Strange and non strange. Strange तो एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन सी? स्ट्रेंजनेस। यस, क्या है जी? ट्वाइस Q माइनस IZ माइनस B। क्या लिख दिया जी? यस इजिकल टू 2 Q माइनस IZ माइनस B। दिस इज कॉल्ड जेलमैन निशिजिमा रिलेशनशिप। अभी याद कर लोगे आज की क्लास में, कल की में भी कर सकते हो। इजिकल टू Q माइनस IZ माइनस B। ठीक है जी। देखो यस क्या है? स्ट्रेंजनेस। Q क्या होना चाहिए? चार्ज, स्टैंडर्ड नोटेशन है। IZ इज आइसोटोपिक क्वांटम नंबर, आइसोटोपिक कंपोनेंट क्वांटम नंबर, जेड डायरेक्शन। IZ, TZ भी लिख देते हैं बहुत बार। IZ न्यू क्वांटम नंबर एंड B मीन्स बेरियन नंबर। तुमको तो कितना अच्छा याद है, बेरियन नंबर।
वेरियन नंबर किसको असाइन होनी चाहिए? वेरियंस को. Baryon number is only assigned to baryons. All baryons will have baryon number +1 and antiparticles -1 and all others जो baryon नहीं है 0. मेसॉन के लिए क्या 0, लेप्टॉन के लिए baryon नंबर क्या 0. ठीक है जी, तो baryon नंबर मालूम पड़ गई, एक क्वांटम नंबर है. गुड. इज फर्स्ट चैप्टर इन पार्टिकल फिजिक्स. व्हाट इज द नेम? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कंजर्वेशन लॉज एंड क्वांटम नंबर्स. यही है ना डोमेन? कंजर्वेशन लॉज. दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू ऑल 7 काइंड ऑफ रिएक्शंस. कंजर्वेशन लॉज. चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. गुड. बेसिक कंजर्वेशन लॉज. चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. Charge is always conserved. Mass is conserved, but mass conservation is converted. Mass is convertible into energy. If the particles are subatomic, then mass is easily converted into energy. So conservation of mass and energy is called conservation of relativistic energy. Conservation, because mass is interconvertible into energy. So conservation of mass and conservation of energy put together is called conservation of relativistic energy. Dynamic mass is conserved. समझे? x plus x, y plus y. Total relativistic energy of the reactant must be total relativistic energy of the products. What is the relativistic energy of capital X? mc square. M is the total mass. Rest mass plus kinetic energy. mc square. So dynamic mass of reactant must be equal to dynamic mass of the products. Dynamic mass. This is conservation of relativistic energy. समझ में आया क्या relativistic energy? Capital E of this mx c square. It is not m0 c square. It is not m0 c square. अगर m0 c square लिखोगे तो प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये समझ जाओ. x plus x is y plus y. What is conserved in when the particles velocity are comparable with velocity of light? If masses are extremely small, then velocity are comparable with velocity of light, and conservation of energy becomes conservation of relativistic energy, no violation. So what is the conservation of relativistic energy? mx plus small mx, they are all dynamic masses, into c square my plus my c square. ये कट गया जी. They are dynamic masses. They are dynamic masses. So if I would have written in terms of rest masses, तो क्या होता? mx 0 c square plus kinetic energy of capital X. Good. Plus mx 0 square c square plus k of small x is equal to my 0 c square plus k of y. स्मॉल भाई क्या जी? ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? रेस्ट मास एनर्जी प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. रेस्ट मास एनर्जी प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. टिपिकल इट इज एट रेस्ट. mx 0 जो है हाइयर न्यूक्लियस इज टिपिकली एट रेस्ट. तो के स्मॉल के एक्स दैट वुड हैव बीन 0. तो क्या आया यहाँ से क्या आया जी? mx 0 प्लस स्मॉल mx 0 c स्क्वायर माइनस my 0 plus my 0 c square is what? ky plus k small y minus kx plus k small x. हो गया कि नहीं हो गया? Conversion of mass into energy. Rest mass of reactants minus rest mass of products is equal to kinetic energy of reactants minus kinetic energy of products. Good. Rest mass of this is called Q value. क्या बोलते हैं इसको? Q value. If reactants had more mass than the products, that means kinetic energy is evolved. Reaction is exoergic. Energy is released.
If this is more, then this will be positive quantity. Q will be positive quantity. That when this will be positive quantity, either this is more or kinetic energy of products is more than kinetic energy of reactants. क्यों भैया नहीं किया था क्या? मैकेनिक्स तो कर रहे हो ना, तब से कर रहे हो ना मैकेनिक्स, तो पढ़ाता भी नहीं है सब में. क्यों पढ़ा गया कि 5-10 नए बैठे हैं बस. रिलेटिविस्टिक सब बता दिया जी. क्यू वैल्यू क्या है? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. इसी को क्यू, सो क्यू वैल्यू इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी. ये समझ जाइए, ये फिजिक्स है, किताब में नहीं लिखा होगा. ये लिखना होता है कि क्यू वैल्यू कहाँ से आई. अगर प्रोडक्ट्स का रेस्ट मास ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. देन ओनली रिएक्शन कैन प्रोसीड, अदरवाइज दैट रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड. सो एंडोएर्गिक Q value is negative, energy has to be given, supplied. Q value is positive, energy is released, evolved. कब होगी? जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो कहीं Q वैल्यू कैलकुलेट करानी है, कुछ नहीं, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड इट इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी. वही था ना, अदरवाइज दिस. सो इट इज नॉट द रेस्ट मास कंजर्वेशन. व्हाट इज कंजर्व्ड? डायनेमिक मास इज कंजर्व्ड. डायनेमिक मास के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा. गुड. कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स रिलेटिविस्टिक एनर्जी. देन एवरी रिएक्शन अकर्स, नो एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस. रिएक्शन अकर्स ड्यू टू इंटरनल इंटरेक्शन. मास की वजह से इंटरेक्शन इज ड्यू टू चार्ज. देन चार्ज देख के रिपल्सन है, पॉजिटिव चार्ज देख के अट्रैक्शन है, नेगेटिव चार्ज देख के अपोजिट चार्ज देख के अट्रैक्शन, सिमिलर चार्ज देख के रिपल्सन. देख के ही है कि नहीं? देख के ही है. कोई एजेंट की जरूरत है? नो एजेंट इज रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो रिएक्शन अकर्स ऑन देयर ओन. इंटरनल इफेक्ट्स, काइंड ऑफ इंटरेक्शन. लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स, लीनियर मोमेंटम इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन. सो ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर अकरिंग ऑन देयर ओन. फोटोन है कहीं तो कुछ फोटो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा. कोई न्यूट्रॉन गया किसी न्यूक्लियस में, मोटा था, कैसा था? मोटा. वो फटने के लिए तैयार बैठा था, जैसे ही न्यूट्रॉन गया फट गया. कोई गुस्से में आके बैठा हुआ है, तुम जाके भिड़ गए उससे, क्या करेगा? गाली देगा तुमको. कोई हायर एनर्जी में बैठा है कोई गुस्सा होके बैठा है और तुम उससे जाके, मैं बैठा हूँ गुस्सा होके, किसी 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 से लड़ाई झगड़ा हुआ है और तुम आके बैठ गए मेरे सामने, तो क्या कहूँगा? तुम्ही को धो दूंगा. अब तुम बुरा मान के चले गए तो तुमको सॉरी कह दूंगा थोड़ी देर बाद में मिल के. ठीक है, कोई ये मेरी पर्सनालिटी का क्या है? बड़प्पन है. सॉरी कह दूंगा जी. भैया तुम समझे ही नहीं मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठा हूँ. तुम सोच रहे हो फिजिक्स पढ़ाने बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ किसी से लड़ाई झगड़ा करके. एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ, किसी को सुनाई थी मैंने. मैं अपने स्कूल में टॉपर था, हमेशा अच्छा ही रहा हूँ पढ़ने में, बहुत अच्छा. मुझे प्रैक्टिकल में 12वीं क्लास में हमेशा 30 में 30 ही मिलने थे. मेरा टीचर एग्जाम देने आया 12वीं क्लास का, उसको हगास लग गई, हगन. और क्या होता है, छोटे छोटे स्कूलों में जो टॉपर होता है उसको सबसे पहले भेज दिया जाता है. मेरे टाइम में ऐसा था, जो स्कूल का टॉपर होगा ना उसी को बढ़ा दिया जाता है उससे. तो आया, वो टीचर को हगन लगी हुई थी और उसने मुझे 2 सेकंड में गायब कर दिया, कुछ उल्टा सीधा पूछ के. और मैं वही स्मार्ट आदमी था, मैंने तुरंत समझा इसको हगन लगी है. और मैं गया प्रिंसिपल के पास, और कैसे भी मुझे 30 में 30 नहीं देता, क्योंकि उसको तो काटना था, मुझे उसको तो कुछ और था, कहीं जाना था दूसरी जगह. एग्जाम्पल जी स्मार्टनेस का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं. जैसे वो उधर गया, मैं इधर प्रिंसिपल के पास गया और मैंने कहा सर जी को वो लगा हुआ है, और उन्होंने मुझे निपटा दिया 2 सेकंड में बिना कुछ पूछे हुए. अब मेरा प्रिंसिपल हिल गया. अगर भैया टॉपर को 30 में 30 नहीं मिले तो बाकी को कैसे दिलाएगा वो नंबर? भैया टीचर आया, वो रिलीव होके आया, खूब खुश हो गया, खूब पसंद था वो. भैया उसकी इतना खुश हुआ, खूब खाया, जितना रखा था सब खा लिया उसने उसके बाद. और वही तुरंत बोला इसको 30 में 30 ही देना है. और अगर मैं थोड़ा भी चूक कर जाता तो भाई साहब प्रिंसिपल उल्टा लटक जाता, वो मुझे 30 नहीं देता और दूसरों को दे देता, टॉपर को नहीं देता, क्योंकि उसको क्या लगा था. तो मैंने भाई एग्जाम्पल सुनाया कि सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट है. ये आपको सिचुएशन का भाप करना, अंदाजा लगाना कि किस स्टेट ऑफ माइंड में है. तो लड़के बैठा है किसी से, कूल करो यार, पहले तो थोड़ा सबड्यूड होके बोलो, ऐसे पहले उसको थोड़ा रिलैक्स कराओ.
तब बातें करो, हो सकता है कुछ हो जाए। अब जिसको अगन लगी हुई है उसका क्या है यार। एकदम तुमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाया है कि सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आपको स्मार्टली कैसे प्ले करना होता है। स्मार्टनेस तो प्ले है। और प्रिंसिपल के अलावा कोई उसको कह नहीं सकता था जाके। प्रिंसिपल भी आया क्योंकि उसको बाकी लड़कों को क्या होता है, छोटे टाउन्स में 2-3 टॉपर दिखाए जाते हैं, उनको एग्जामिनर खूब अच्छे से इंटरव्यू करता है, खूब ज़्यादा देर लेता है, उसके बाद भी छोटे को दिखाया जाता है, उसके बाद नंबर लिखवा दिए जाते हैं, भाई साहब इनको 28 दे दो, 24 दे दो। तो टीचर इंप्रेशन हो जाता है, खा पी के खुश हो जाता है वो कि काजू वाजू रखा हुआ है, खूब उसके स्वागत में वो नंबर दे देता है। लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र खाली चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या कह रहे हो? अब बच्चा कैसे ठीक होगी? तो भैया मैंने सबको बचाया एक एक। तब से मैंने ये उदाहरण है जिंदगी का कि बताता हूँ कि सिचुएशन को हम बिना सिचुएशन को समझे हुए जब रिएक्शन करते हैं तो बहुत बार हमें मालूम नहीं होता है। अब क्या है, भारत में हर व्यक्ति तो एक्सपर्ट हो जाता है। चलो एग्जाम नहीं पास किया होगा, अब 12वीं का कहेगा IAS को तुमको सजेस्ट करने लग जाए, ये किताब पढ़ लो, वो कर लो, सब किताब वाला तुमको किताब बताने लग जाता है। हर आदमी यहाँ पर नेतागिरी पॉलिटिक्स में कमेंट रखता है। चला ये नहीं मालूम कि चीफ मिनिस्टर साहब ने क्यों डिसीजन लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों डिसीजन लिया, उनकी क्या सर्कमस्टेंसेस थे, कितने फोर्सेस थे उनके ऊपर जो ऑपरेट कर रहे थे, इंटरनेशनल प्रेशर था कि नेशनल प्रेशर था। बहुत सारे डिसीजन जो हैं ये नहीं कि हम सिर्फ भारत को देख के ले रहे हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देख के लेना होता है डिसीजन साहब को, बिकॉज वर्ल्ड इज कनेक्टेड। अब हम उनको कमेंट करें डाल रहे हैं बैठ के, तो जो कमेंट करने की हमें फ्रीडम है एक्सपर्ट के तौर पर, जब हम किसी सिस्टम का पार्ट होते हैं, जब हम जैसे आज मुझे जितनी फ्रीडम है उतनी फ्रीडम MP बनने का बात नहीं है, मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, एक डिसिप्लिनरी है। आई कैन नॉट से एनीथिंग जो भी जाके कैमरे में कह के निकल जाऊँ। कहेगा सर बोल नहीं रहे जी इस बात पे, क्यों बोलेंगे सर को आपने मेंबरशिप खराब करा दी है क्या? तो जो रिलेवेंट है, जो अच्छी चीज़ें हैं वही बोलनी है। हाँ ये या कहीं आप कहीं ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे हैं तो बता देंगे भाई साहब क्या कारण है, कि पूरी चीज़ें आपको समझा सकते हैं, दीज आर द हाउ द डिसीजन इज टेकन। And as a bureaucrat, as an administrator, you have to know all the circumstances, how decision making process takes place in the government. ट्रेनिंग वेनिंग में यही सब तो कराया जाता है आपको कि गवर्नमेंट डिसीजन लेने की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेनी आदर्स इज नॉट दैट सिंपल। जब आप डिसीजन लेते हैं एथिक्स के फेवर में तो देखते हैं ना कैसे कैसे सिचुएशन बना के देता है आपको, कैसे सिचुएशन, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों कॉन्टेस्ट हैं एकदम, एंड यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। टू वैल्यू इज क्लियर। कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा Q0। डेल्टा Q0 मतलब नेट चार्ज ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नेट चार्ज ऑन प्रोडक्ट्स। Net charge on the reactants must be equal to net charge on the products, and charge is an additive quantity. Charge is an additive quantity. सीधे जुड़ना है, मालूम है आपको कैसे देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी, conservation of linear momentum, and linear momentum is a vector quantity. जब तक other details are not known, you cannot conserve. You know how to conservation of linear momentum is applied. Conservation of linear momentum. 4. If no external force is there, there will not be torque. If there is no external force, there will not be any torque. Then angular momentum will be also constant of motion. Angular momentum is called nuclear spin. What is called? Name of angular momentum. Nuclei having angular momentum may be due to orbital motion or may be due to spin. L plus S is I. I is L plus S. Nuclear LS coupling. I total is called nuclear spin. Name for nuclear angular momentum is nuclear spin. Good. So conservation of angular momentum, also called conservation of angular momentum,
भैया ये मत समझना कोई भी बेकार की बात बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सारे आंसर हो जाएंगे हर साल। ये मत सोचना मजाक कर रहा हूँ, मजाक करके समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट चीज़ें बताने जा रहा हूँ एकदम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन अरे वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पिन कंजर्वेशन, every nuclei you can find out the spin. Half integral spin, if the reactants are having half integral spin, product should also have half spin. I will say conserved. What do I mean by conservation? Half spin means half in the reactants, product is having 5/2 or 3/2, it is conserved. And add, simple, one, some particle is having 1, other is having half, what is the net? 1 and half, what is the net? Half integral spin. one particle is having, capital X is having spin 1, photon समझ लीजिए, other one is having spin half, both of them are vectors. What could be the resultant? Half or 3/2, half or 3/2. I will say half integral spin, half or 3/2, half integral spin. Product should also have the same thing, not that product should have one is 1, other one is 1 or 1 and 0. If products are 1 and 0, what is the net? Full integral spin, 1 and 0, 1 minus 0 or 1 and 1, 0, 1, 2, no way half. But if one is 1, other one is half, then is what? Half or 3/2. So they can adjust itself. Half integral spin this side, half integral spin that side. I say nuclear spin is conserved. Need not be full. मतलब इधर half है और उधर भी half है. Need not be half and 3/2. I said it is conserved. So half integral spin of the reactants, half integral spin of the products, it is conserved. Full integral spin of the reactant, full integral spin of the products, it is conserved, and it can be checked. It has to be checked everywhere. This you may not be able to check conservation of linear momentum until unless I give you some data. You are not in a position capable of checking conservation of linear momentum. समझ में आया? जब तक मोमेंटम नहीं दिया हुआ है प्रोडक्ट्स का, तब तक आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम चेक नहीं कर सकते, सिर्फ लिख सकते हैं. But conservation of spin has to be checked. They are basic conservation laws. These 4 are basic conservation laws. None of them can be violated. If any one of them is violated, reaction does not take place. Reaction is forbidden. If any one of them is violated, reaction is forbidden. Good. Next. चले जाइए. 8 कंजर्वेशन लॉज, ध्यान रखना. कितने? 8. एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट सेटिस्फाई 8 कंजर्वेशन लॉज. अभी तो 4 ही लिखे हैं. कितने? 4. 8 कहाँ से करूंगा इनको? लेप्टॉन नंबर एंड वेरियॉन नंबर. लेप्टॉन्स नंबर हैज टू बी कंजर्व्ड, वेरियॉन्स हैज टू बी आल्सो कंजर्व्ड. वेरियॉन नंबर कंजर्वेशन. सो 5, वैसे तो 5, 6, 7 ये सब लेप्टॉन नंबर है. क्या जी? LE, LMu, L tau. तो या चाहे आप समझ लीजिए लेप्टॉन नंबर 3 तरीके की होती है. लेप्टॉन नंबर कितनी तरीके की? लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, लेप्टॉन क्वांटम नंबर कंजर्वेशन. अभी समझाऊंगा, बहुत मज़े से समझाता हूँ, बहुत मज़ा लेता हूँ उनके लिए, बहुत आनंद से समझाऊंगा लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन. और 6th है बेरियन. हो गए 8. कैसे? लेप्टॉन नंबर 3 तरीके की होती है. LE, LMu, L tau. लेप्टॉन नंबर 3 तरीके की होती है. तीनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है. LE इलेक्ट्रॉन, LMu, muon, L tau, tau1. And these are additive quantities. Both of them are additive quantities. If any one of the 8 is violated, any one of the 8, that means reaction is forbidden. So मैं पूछूं किसी क्वेश्चन में whether reaction takes place or reaction does not take place, क्या सिर्फ प्रूव करना है मुझे? एक भी वायलेट हो गई तो इसका रिएक्शन इज forbidden है. All the 8 takes place, that means reaction occurs.
अकर्स। इसके बावजूद भी हो सकता है शायद ना हो, बट नॉर्मली होनी चाहिए। कब नहीं होगी? व्हेन इट इज स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोडक्शन रिएक्शन। इफ इट इज द प्रोडक्शन रिएक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल, स्ट्रेंजनेस मस्ट बी कंजर्व्ड। एसेंस इसके बाद भी हो सकता है रिएक्शन ना हो, तभी नहीं होगी व्हेन द रिएक्शन इज, व्हेन द पार्टिकल इन्वॉल्वड इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोडक्शन शुड कंजर्व स्ट्रेंजनेस। आई विल एक्सप्लेन। बट ये अगर है तो रिएक्शन होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप, इफ दीज कंजर्वेशन लॉज आर सेटिस्फाइड, रिएक्शन मस्ट take place. If any one of them is violated, reaction is forbidden. You can cite this conservation law is violated, reaction is forbidden. Good. So 8 conservation laws are essential, satisfied by any interaction, whether the reaction is by strong interaction or by weak interaction or by electromagnetic interaction, any interaction, these has to be satisfied. अगर मुझे मालूम पड़ेगा इनमें से कोई violated है, reaction will not proceed. Correct? Then next. So lepton number क्या है? All leptons are having lepton number +1. Anti-leptons are having lepton number -1. All baryons are having lepton number 0. Mesons are having lepton number 0. Lepton number is also 3 categories. Electron lepton number for electron and its neutrino, muon and its neutrino L mu, and tauon and its neutrino L tau. So there are 6 kind of leptons. There are 6 kind of leptons. 6 काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक म्यूऑन है और एक टाउऑन है। अभी लिखने जा रहा हूँ, एल ई एल म्यू एल टाउ, एल ई एल म्यू एल टाउ। 8 कंजर्वेशन लॉज। नेक्स्ट 9, 10, 11, 12। इसके बाद फिर कबाड़ा, किसी काम के नहीं, आपके लिए बहुत काम के नहीं। 13, 14, 15 क्या CPT, 16 CP, 17 कितने कंजर्वेशन लॉज हैं? 17 है। 17। हाउ मेनी कंजर्वेशन लॉज? 17। एवरी ईयर, एवरी टाइम दे आस्क। 13 में क्या लिख दिया? C मीन्स चार्ज कॉन्जुगेशन, P मीन्स पैरिटी, T मीन्स टाइम रिवर्सल, CP मतलब CNP टुगेदर, CPT मतलब तीनों, ऑल द 3 टुगेदर। ये बाद में बताएंगे। चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी याद कर लो। टीचर जी का नाम होगा ना, CPT। टीचरों के नाम ऐसे ही चले जाते हैं, DPT, CPT, VKS। कॉलेज के टीचर, स्कूल के टीचर तो मास्टर साहब हैं भाई साहब। कोई मास्टर हेम सिंह मास्टर साहब हैं, ताराचंद मास्टर साहब हैं, है ना। और इसको कॉलेजों के DK सर, PK सर, VK सर, ऐसा ही है ना। ऐसे CPT सर है, CPT सर। और भी कोई सर बताने वाले हो क्या? CPT सर। हमारे कॉलेज में भी ऐसे बताते हैं, VKS सर, DKS सर। और फिर गाली देते हैं टीचर, स्टूडेंट बैठ के बहुत आरामी है, बहुत बदमाश है, मार्क्स नहीं देता है। जो जैसा है वैसा ही याद रखते हो, बदलते ये ना है कि गुजर गए तो उनको गुजर गए होंगे बहुतों के टीचर वैसे आपके नहीं गुजरे होंगे, हमारे वाले सब अधिकांशतः गुजर ही गए। लेकिन उसके बाद भी जब भी कोई साथ वाला मिलेगा तो वही याद करोगे कैसा था। बहुत बदमाश था, बहुत मारता था खड़े होके कुर्सी पे। लेकिन जिसको मार दिया वो भी बहुत रेस्पेक्ट के साथ याद कर, मुझे मार के सुधार दिया। बहुत सारे ऐसे सोचे, अब वो गलती कभी नहीं करता हूँ। जो पहले स्टूडेंट मुझे मारा था ना, मुझे नहीं मारा खैर वैसे। मेरे टीचर मेरे ऊपर बहुत गर्व का अनुभव करते थे जी। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत शरीफ बच्चा था, इलेक्शन ज़रूर लड़ता था। और इलेक्शन हमेशा शरीफ लोग ही लड़ते हैं। और बताओ तुमको, मैं जब भी चुनाव उन्हीं को लड़ाया जाता है जो देखने सुनने में शरीफ होते हैं, जिसको लगता है इससे पकड़ के काम करवा लेंगे, ये इमेज चलती है साथ में, यहाँ काम आ जाएंगे हमारे, कहीं भी पकड़ के ले जाएंगे उठा के। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट भी था, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था। तो मुझे तो टीचरों का मैं शोपीस था। कहीं भी धर्म प्रकाश से लेकर भाषण दिलवा लो, कोई भी आएगा, मेरा भाषण निश्चित है। स्टूडेंट लाइफ से भाषण दे रहा हूँ, 6ठी क्लास से।
मैं 9 साल की उम्र में छठी क्लास में गया। मेरा प्रिंसिपल बोला कि बच्चा शेर है, ऐसे उठा लिया मुझे, ऐसा छोटा, और इतनी जोर जोर से बुलंद चिल्लाया अंग्रेजों के खिलाफ। 15 अगस्त में पहली बार बोला था, स्वातंत्र उमंगों की तरंग नर में गौरव की ज्वाला है, स्वातंत्र रूह की ग्रीवा में नरमुंड विजय की वाला है, स्वातंत्र भाव नर का आदम में वो जो चाहे कर सकता है, शासन की कौन बिसात कहो, पाँव विधि की लिप धर सकता है। खूब रट के गया था और जोर जोर से गरजा। तो चला, इतना छोटा सा बच्चा, मेरा बच्चा भी मेरे से काफ़ी बड़ा था हाइट में। मेरे खुद के बच्चे मेरे से मतलब मेरे से कम 7 इंच लंबे हैं, 6 फुट 2 इंच के हैं दोनों। एक 6 फुट 3 इंच का है, एक 6 फुट 2 इंच का है, और मैं छोटा पाट ऐसा छोटा था, दुबला पतला मरगिल्ला, और जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। हमारे महान मनीषी प्राचार्य जी और विद्वान शिक्षक गणों और साथियों, आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो जिंदगी में छठी क्लास में 5वीं बोर्ड से लिया प्राइवेट, 5वीं तक तो स्कूल ही नहीं गया। 8 साल की उम्र 9 साल की उम्र मैंने छठी कर लिया, और पहली बार कहीं बोलने का अवसर मिला। जिंदगी वैसे तलाश रहा था कहाँ बोलने का मौका मिलेगा मुझे। तो खूब पढ़ के खूब याद कराया गया मेरे घर में, भाषण दोगे तुम जाके। और मैंने छठी में जब बोला तो मेरा प्रिंसिपल ने मुझे उठा लिया, आज भी याद रखता हूँ। आरपी सक्सेना मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने उठाया मुझे, कहा लड़का शेर है। बस उसके बाद से तो जिंदगी भर से भाषण दे रहा हूँ। एक बार छठी क्लास में बोलना क्या शुरू किया, छठी क्लास में क्या भाषण देना शुरू किया, तब से बोल ही रहा हूँ। गुड। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो काम करना होता है जिस आदमी को जीवन भर, उसके बचपन से ही वो गुण मालूम हो जाते हैं। एक काम लगातार कर रहा हूँ छठी क्लास से। फिर स्कूल में तो इलेक्शन होते नहीं थे, लेकिन मेरे स्कूल में 9वीं क्लास में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी आ गए, हिंदी के कवि। तब उन्होंने रामकृष्ण गांधी के बारे में ऐसा भाषण दिया कि उन्होंने जेब से निकाल के 5 रुपये दिए मुझे। हिंदी के महाकवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी मेरे स्कूल में आए थे, 5 रुपये की मुझे दी मेरे भाषण सुन के। ये नहीं कि मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के या मेरे टॉपर होने के, ये सब तो सेकेंडरी टर्सरी है यार, टॉपर तो कभी भी बन सकते हो आप। पर्सनालिटी इन सब चीज़ों से आती है। मुझे मालूम है, मुझे मेरा जीएससी शानदार है, तो कमांड है भाषा में मुझे। मेरे से आप लैंग्वेज में फाइट नहीं कर सकते। हिंदी में तो अतुलनीय है, बेस्ट हिंदी है मेरी। अगर हिंदी साहित्य लेता, मैथ्स नहीं लेता, तो एग्ज़ाम रिडंडेंट हो गया होता। अगर लिटरेचर से एग्ज़ाम देता फिजिक्स के साथ अगर मैं लिटरेचर ले लेता कोई भी सब्जेक्ट, तो मेरे लिए एग्ज़ाम इंटरव्यू रिटेंडेंट हो गया होता। फिजिक्स में 400 नंबर आया करते थे, 360 हर बार फिजिक्स में मुझे 360, पूरा कोर्स याद है यार। ज़बरदस्त मेमोरी है, हज़ारों कविताएं याद हैं, हज़ारों श्लोक याद हैं, हज़ारों, पूरा पेज पलट गया। अब तो नहीं कर, अब ये मत सोना 50 साल के आदमी के साथ कंपेयर करने लग जाओ। अब सर याद भूल जाते हैं, सब कहते हैं। अभी भी भूलता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं भूलता हूँ। जो बोलने वाली चीज़ नहीं है वो नहीं भूलना है। पढ़ूंगा तो याद ही कर लूँगा, अगर 2 बार कंसंट्रेशन से करूँगा तो अभी भी याद कर लेता हूँ। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कुछ रहे ना रहे, लेकिन मेमोरी बनी रहे। क्योंकि जब तक मेमोरी बनी हुई है तब तक सम्मान तो सुनिश्चित है। ये सम्मान भी क्यूमुलेटिव है। 25 साल बढ़ाया है, आगे बढ़ाता रहूँगा 25 साल। 2 घंटे तो हमेशा निकाल लेना है मुझे पूरे दिन में, चाहे संसद का सेशन चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, चलता रहेगा संसद का सेशन। 10-11 बजे के बाद तो जाना है। बस क्लास क्या है, 8 से 10 की हो जाएगी। सर बहुत काम, किसी का क्या होता है मुझे नहीं मालूम, बहुत काम होता है। क्या आपको भी बताऊंगा कैसे, कभी ले जाऊंगा संसद के सेशन में, देखना कितना काम होता है। और हर एक को उल्टा लटकना पड़ता है आज के ज़माने में। ठीक है, जिसका धंधा हो गया ना, जिसका प्रोफेशन हो गया ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है ना, उल्टा लटकना पड़ता है। पार्टियां व्हिप जारी कर देती हैं, पहुंचना है, अटेंडेंस लगानी है आपकी। मास्टर की जैसे अटेंडेंस लगती है, मोदी जी नज़र रखते हैं कि भाई साहब ये नहीं आया, अगली बार टिकट ना मिलेगी। क्या आया ही नहीं, अटेंडेंस नहीं है, हमारे खिलाफ बोला जा रहा था, हमें डिफेंड नहीं किया हमें आके। हर पार्टी वही एक्सपेक्ट करती है कि डिफेंड करना ही करना है बोलने में, और जो बोल सकता है उसी की वैल्यू है। बोल सकता है, डिफेंड कर सकता है जी। खड़े हो गए, पहले थोड़े दिन बाद नंबर 2 बार देखेंगे, अच्छा बोल लेता है, हर बार आएंगे।
उसके बाद फ्रंट रैंकर हो गए थोड़े दिन के, ऐसे पब्लिक लाइफ आती है, थोड़ा पब्लिक लाइफ है। लेकिन अगर 8 घंटे लगा दो, 8 घंटे तो शानदार है। कितने संसद का सेशन कितने 11 बजे चलता है, 5-6 बजे खत्म हो जाता है। क्लास तो सवेरे ही हो जाएगी, 8 से 10, 8 से 10 क्लास का सिर्फ टाइमिंग शिफ्ट होना है। ये मत समझना कि क्लास बंद होने वाली है, किसी कंडीशन में ही होगी, कभी नहीं। क्लास की कॉस्ट में तो चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। 14 में भी यही किया था। अब इस समय क्योंकि मेरे स्टेक्स बहुत कम है, 14 में स्टेक्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए 14 में विड्रॉल किया था। इस बार अगर होगा तो इलेक्शन भी लड़ूंगा, MP भी बनूंगा और क्लास भी लूंगा। और अब तो क्लास अखिल भारतीय हो जाएगी। जहाँ जाऊंगा ना 2 क्लास फिजिक्स की लगा दो यार। हर जगह जहाँ गया वहाँ एक मैसेज है कि भाई साहब, वाइस चांसलर साहब, अरे वैसे फिजिक्स वाले क्लास में भेज देना 2 दिन, एक प्रोफाइल और है। मैंने कहा ये प्रोफाइल कम ना हो जाए कहीं भी। 25 साल में बनाई है, ये तो 5 साल है, 5 साल बाद हो सकता है ना हो। तो अपनी प्रैक्टिस खत्म करनी है, अपनी इमेज को खत्म करना है कि एजुकेशन के सेक्टर से आए हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, IAS बनाते हैं, 1000 से IAS बनाए हैं। अगली बात तो 1000 के 30 नहीं बनेंगे, 30 घट गए मेरे। 30 का घटना नहीं टॉलरेट कर सकता, और कुछ भी टॉलरेट कर सकता हूँ। रिजल्ट तो आना ही चाहिए, और बढ़ा दूंगा तब तो 100 और आ जाएगा। जैसे जैसे MP बन गया ना, पूरा GS का शो चलने वाला है बिग स्विंग में। तभी तब अभी 30 को बना रहे हैं, तब 100 को IAS बनाएंगे। देखना 100 का रिजल्ट छप रहा है, लोग लपक लपक के फोटो खिंचवा रहे हैं आके मेरे साथ, भाई साहब सर पोस्टिंग भी करवा दो। अभी तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, उसके बाद तो उस काम भी आने लायक हो जाएंगे ना, उस काम आने लायक भी हो जाएंगे। इसलिए 24 में तो पूरी एनर्जी लगानी है। टिकट मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो चल रहा है, ठीक है, वो भी अच्छा है। जो हो रहा है सब अच्छा है, कोई घाटा नहीं है मेरे को, कोई स्टेक नहीं है मेरा, मुझे कोई लॉस नहीं है। 14 में बहुत लॉस था। 14 में अगर BRS मिल जाती तो 14 में खड़े हो जाते।